the permission so that we can start with the session. Please go ahead. Thank you so much, sir. So now I would like to call upon Professor Dinesh Jain to please welcome our guest speaker for the day. Over to you, sir. Good morning, all present. I feel privileged to introduce you Mr. Milind Kawatra. He is founder and CEO of Human Hum Hai. His organization caters 2,000 people every month by providing on-demand pickup and delivery services of goods and essentials. Milind is the winner of F65 2016 Alpha Founder Award, and he is a regular speaker on many startup forums and events. Till date, he has been a speaker on 50 plus startup events with the goal to motivate people on how to execute efficiency. He has also shared his Hamha journey on TEDx platform couple of times in the year 2019 and 2020 respectively. Milind has a dream to expand Hamha services to cities across India, thus fulfilling his long cherished dream. So now I invite Mr. Milind Kwatra for sharing his journey. Over to you, Milind. So please unmute yourself. Sir, you're not audible. Okay. So I was muted by someone, I guess. So I forgot one name to say. Yes, sir. Now you may please continue. So this is very unusual because whenever I say that hello everyone or how are you all, and I'm not able to get a response because around 80 to 90 people who are online on this session because of this online thing and everything. So this sounds very unusual. It is only yesterday I came to know that this again is an online session. I was really excited. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Great. So this is very rare, and only yesterday I came to know that this is again an online session. I was really excited, and I was really hoping that this would be an offline session. So that is also a big thing. That now the colleges are starting to open and everything. I don't know when is your guys' dates coming so that you can get back. And since I think that this is the first year batch, right? So if this is the first year batch, so it is so unusual for everyone to just be so excited for college and then complete their plus two in lockdown and then again start college in lockdown and again then all this online world and everything. Whereas everyone has hopes that they will roam around in college, meet people, make new friends, and then enjoy the so-called life because after plus two, everyone is just looking forward to just take a break and then enjoy this time. And this everything, every scenario has just disrupted everything. So I think everyone will be hoping to join colleges very, very fast. This is what I suppose, because again, when I will say yes or I will try to get a response from you, no one will be able to show that because I'll not be able to see everyone. So coming forward, going forward, so time is around 11:13 and we have around 40 to 45 minutes. And since I'll not be able to see everyone's face and I have to talk about how we came here or what about Hum Hai, how did I start it, and where are we going now, and what are the things that first year people like you can really focus on or include in their lifestyle so that they can also do something different and do something really, really amazing. So that is my whole goal for today. And for next 40 to 45 minutes, my whole purpose would be to one way or the other make sure that you would be able to get inspired by some or the other story, either mine, either some that I share, and then actually reinculcate that in your life so that some fruitful thing comes out. And since it's India, I forgot because many of my sessions happen internationally, so I can speak in Hindi also because Hindi में मैं ज़्यादा comfortable हूँ. So सबसे पहली बात I would like to say कि सारे फर्स्ट ईयर में जो प्लस टू के बाद आए हैं सबके मन में ये होता है, पहले तो सबको होता है कि हमने रिलैक्स करना है, बट आई थिंक आजकल काफी लोग करियर फोकस्ड हो चुके हैं कि नहीं हमने क्या करियर चूज करना है, हमने इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है, हमने इस पर्टिकुलर चीज में जाना है और इस पर्टिकुलर चीजों में सक्सेसफुल होना है. तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस यार कि अब दुनिया कहाँ पे जा रही है, वर्ल्ड क्यों चेंज हो चुका है और हमारी 5 साल पहली वाली अप्रोच या 10 साल पहली वाली अप्रोच अब क्यों नहीं चल रही है ना.
कोविड के बाद तो वैसे ही बहुत बड़ा लीप आ गया है इन द वे द वर्ल्ड वर्क्स, बट उसके अलावा भी पिछले 5-10 सालों से एक बहुत फास्ट चेंज आ रहा है। जैसे एलन मस्क भी कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग। लास्ट 10 साल में लाइफ जितना बदली, अगले 5 साल में उतनी बदल जाएगी, और फिर उतना ही चेंज आने के लिए अगले 2-3 साल में वो चेंज हो जाएगा। सो द रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब आज अगर मतलब मेरे पापा और मेरे दादाजी में जो जनरेशन गैप था वो मेरे और मेरे पापा में उससे भी बहुत ज्यादा है, और मेरे आगे बच्चों में वो और भी ज्यादा होगा। सो सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज एवरीथिंग गेट्स डाइड आउट वेरी फास्ट। मतलब अगर हम, और बंदा करियर कैसे चूज करता है कि यार कि मैं कोई ऐसी चीज करूं कि यार मैं किस में सेटल रह सकूं, किस चीज का टाइम है, किस चीज में मेरे को सक्सेस मिलेगी, जबकि द रियलिटी इज कि कुछ भी चीज 5-10 साल से ज्यादा स्टे ही नहीं करने वाली। So ये attitude of people that I have to choose a career where I get settled for life, or I have to choose something where I can earn money for life, और कहीं पर जाके मैं एक बार सेटल हो जाऊं, एक अच्छी जॉब लग जाए या एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या फॉर एग्जांपल मैं अच्छी कंपनी में चला जाऊं, या मैं ये चीज अच्छे से कर लूं या वो चीज अच्छे से कर लूं। सो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड ऑनेस्टली आने वाले टाइम में इट इज ऑल अबाउट हाउ यू इमोशनली मैनेज योर सेल्फ एंड व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। बिकॉज आप देखना, आज से 10-15 साल पहले फॉर एग्जाम्पल जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूं या आप पढ़े हो, वैसे अच्छे स्कूलों में अच्छी एजुकेशन आपके पेरेंट्स की मेरे पेरेंट्स की नहीं हुई। बहुत रेयर होगा कि हमारे पेरेंट्स को भी उतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है जितनी हमें आती है। बहुत रेयर होगा कि वो भी, उनको भी उतना एक्सपोजर मिला जितना हमें मिला है। अगर वो लुधियाना गए तो बहुत कम। वो अलग बात है कि कोई चंडीगढ़ से पेरेंट्स आ गए या दिल्ली से आ गए, बिकॉज वो स्मार्टर सिटीज ऑलवेज मूव अहेड ऑफ नॉन स्मार्टर सिटीज। सो यू विल सी कि हमें जो एजुकेशन मिली वो ऊपर वाले लोगों को नहीं मिली हुई। सो हमारे पेरेंट्स को ये नोशन था कि क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन में नहीं पढ़े, वो हमेशा ये सोचते थे यार कि अगर हमारी एजुकेशन बेटर होती तो हम लाइफ में ज्यादा ग्रो कर पाते। इसलिए वो अपने बच्चों को पहले दिन से बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। और ये एक बेसिक चीज है, मैं भी दूंगा, आप भी दोगे, कल को आप भी अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन की ट्राई करोगे। बट द पॉइंट इज, जहां पर एजुकेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर था, किसी के सक्सेसफुल या नॉन सक्सेसफुल होने में, आज की डेट में वो नहीं है। आज की डेट में एवरीवन इज इंटेलिजेंट, आज की डेट में एवरीवन इज फ्रॉम अ गुड स्कूल, आज की डेट में एवरीवन इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वेल वर्स्ड इन एवरीथिंग। सब कुछ में हर बंदा हर चीज में अच्छा है। तो आप पहले ये सोचते थे, क्योंकि हमारे घर वालों को लगता था कि वो बिजनेस में जब जाते हैं तो यार अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे होते, ज्यादा इंटेलिजेंट होते, ज्यादा उन्होंने किताबें ज्यादा पढ़ी होती तो शायद वो सक्सेसफुल होते, क्योंकि आसपास अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा थे, क्योंकि तब एजुकेशन इतनी नहीं थी आज से 15 साल पहले। बट अब ऐसा नहीं है। So with this notion ki we will beat everyone out by bringing good marks, or we'll beat everyone out by topping in the college or topping in university or doing all these things, मतलब आप अपने पीयर से compete करके बेस्ट होने में अगर ट्राई करोगे कि मेरे को बेस्ट नंबर लाने हैं या बेस्ट ये करना है, आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क टुडे। द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच। अब कंपनीज को, दुनिया वालों को, सबको पता लग रहा है कि यार कि एक्चुअली हमें किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। उसका मार्क्स से, उसकी डिग्री से, उसकी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। पॉइंट इज यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड दैट मेरे को अपनी लाइफ में क्या चीज लर्न करनी है बेसिक लेवल 1 पे। एंड सिंस वी एज्यूम कि स्कूल में बंदा कुछ भी नहीं सीखता अबाउट देयर लाइफ एंड अबाउट वर्ल्ड एंड दुनियादारी, बिकॉज वो स्कूल में ही रहता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। अब कॉलेज में यू विल हैव ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, लर्न अबाउट business, learn about life, learn about people, learn about relationships, learn about taking individual decisions. You are all 18 plus now, so everything is going to come new to you. So I'm just telling you that your focus should not be on bringing good marks on studies alone, but your focus should be on learning more things about life and then exploring yourself. आपका अभी इस टाइम फर्स्ट ईयर में आके अगले थर्ड ईयर तक सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए, लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड लर्न अबाउट योरसेल्फ। एक तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि उनको अपने बारे में बहुत कुछ पता, इसलिए वो रिलेशनशिप चॉइसेस भी बड़े एडमेंटली ले लेते हैं, वो बिजनेस चॉइसेस बड़े एडमेंटली ले लेते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, अप टिल यू आर 23, 24, 25, आपको यही सोचना चाहिए यार कि मैं जो भी आज सोच रहा हूँ, मेरे मन में जो भी आज थॉट आ रहा है, जो भी मैं करने का मन कर रहा है, मेरे को जस्ट कर देना चाहिए। मैं ये ना सोचूं कि यार कि मेरा हर एक डिसीजन नेक्स्ट 10 साल के लिए होना चाहिए, मेरा हर एक डिसीजन नेक्स्ट 20 साल के लिए होना चाहिए। अपनी लाइफ में अभी फर्स्ट ईयर की एज में कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लो। अभी अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट समझो, अपने आप को यही समझो यार कि मैं अभी तो निकला हूं बाहर, अभी मुझे दुनिया के बारे में, चीजों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सीखना है। और वो तभी होगा जब जितने आप, जो भी मन में आएगा वो पंगे लेते रहोगे, क्रिएटिव होगे। एंड कॉलेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। स्कूल में आपको पता है अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे हैं उनको ले जाते हैं, काफी चीजें होती हैं आप फ्रीली खुद नहीं कर सकते हो,
स्कूल में जाके आप प्रिंसिपल को ये नहीं कह सकते हो कि प्रिंसिपल सर मेरा ये करने का मन है, मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं. बट कॉलेज में दैट फ्रीडम इज देयर, एंड सिंस यू आर ऑल in one of the very good colleges, because I also dropped out of here, so one of the very good colleges, so you have complete freedom to make sure that whatever you want to do, you are able to do it. Colleges में लोग politicians बनते हैं, colleges में लोग artists बनते हैं, colleges में लोग businessmen बनते हैं, colleges में लोग salesmen बनते हैं, colleges में लोग micro managers बनते हैं, और colleges में लोग event managers बनते हैं. Everything that a person is doing right now, उनका काफी चीजें उनको कॉलेज से पता लग जाती है, जिसने कॉलेज अच्छे अच्छे अटेंड करे हैं. हमारे पेरेंट्स ने तो उस टाइम पे तो ना उसको ध्यान होता था, कुछ होता था, सिर्फ वेले घूम के आ जाते होते थे. बट राइट नाउ यू आर इन द राइट प्लेस, राइट प्लेटफॉर्म, एंड द कॉलेज ऑल्सो, ऑल द प्रोफेसर्स दैट आर गोइंग टू टीच यू, दैट आर गोइंग टू कोच यू, दैट आर गोइंग टू बी योर मेंटर्स, द ओनली फोकस हैज टू बी कि तुम्हें ग्रूम करना है. बट कभी कभी हमारा ही फोकस नहीं होता कि हमें बेटर होना है, हमें स्किल सीखने हैं, हमें नया क्या सीखना है, मुझे नया क्या ट्राई करना है. सो मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि औरबिंदो में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम भी है कि हर इंटेलिजेंट स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चे औरबिंदो में आ जाते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं जाने देते. तो औरबिंदो में वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर भी आगे वो पढ़ाई ही करते रहते हैं. जो तो पढ़ाई नहीं करता, बाकी चीजें करते हैं, वो बहुत कुछ सीख लेते हैं. बट जो लग जाते हैं, नहीं जी हम तो +2 करके आए हैं, अब हमने पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है, वो बच्चे फिर मतलब कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं ले पाते. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो +2 में भी, मतलब उन्होंने कॉलेज में भी जाके भी ट्यूशन लगाई होती थी. एंड आई एम लाइक भाई क्या हो गया? कहते नहीं मुझे टॉप करना है, टॉप करना है. और उसके बाद बेचारा उसने ग्रेजुएशन कर ली, अब जाके उसको फिर हमने लग लग के, सारे फ्रेंड ने लग लग के उसको प्रोजेक्ट्स दे दे के उसको चीजों के बारे में सिखाया. मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है, मुझे कोई बिजनेस पंगा लेना है, मेरा जो भी कुछ मन आ रहा है कुछ क्रिएट करने का, कोई नए आइडिया का, कोई ऐसी चीज जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती है, कुछ भी करने का उसने कभी ट्राई नहीं करा. वो उसको था नहीं मैं पहले पढ़ लूं, पहले पढ़ लूं, पहले पढ़ लूं. सो जस्ट मेक श्योर दैट उस रास्ते पे आप मत चलना. मेक श्योर दैट स्टडीज आर 30 to 40% ऑफ योर टाइम. You have to literally learn from what you are taught in the seminars or the lectures that you get. ये मत सोचो कि मैंने आज पढ़ना है तो मुझे नंबर लाना है एग्जाम में. And I am telling you, Aurobindo has one of the best staff, one of the best teachers. और जितना आप brainstorm करोगे, पता है एक बात होती है, एक अच्छा गुरु भी हमेशा यही बोलता है कि एक अच्छे शिष्य पे मैटर करता है कि वो गुरु से क्या निकाल पाए. और मैं ये देखता हूँ कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि लोग, बच्चों का ही मेंटल एटीट्यूड वैसा नहीं है कि मुझे कुछ सीखना है. उनको लगता है नहीं यार कि हम बस पढ़ाई करके या जो हमें टीचर्स बोल रहे हैं वो करेंगे तो ग्रो हो जाएंगे. ये आप हमेशा मेक श्योर करो कि आपके अंदर से एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि मैं अगर कॉलेज में आया हूं तो मुझे क्या लर्न करना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे. अगर आपको लगेगा कि नहीं टीचर डंडा दे, ये वाली तुम्हारी असाइनमेंट नहीं आई, टीचर डंडा दे, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट नहीं आया, टीचर डंडा दे, ये वाली हमारी चीज नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो आप हैफेजर्ड ना कुछ लर्न कर पाओगे, आप सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करते रह जाओगे, कभी किसी से कॉपी कर ली, कुछ कर लिया, ये सब कर लिया. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज these 3 years are going to be the most important period of your life. Because अभी तुम्हारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का. Because once you go out there, life is very ruthless. And let me tell you why ruthless. I don't know. I don't think कि औरबिंदो में ज्यादा लोग एजुकेशन लोन लेके आते होंगे. बट दुनिया में बाहर क्या होता है? सपोज करो आपकी 3rd ईयर हो गई, एक तो होगी आपकी जॉब लग गई. जब जॉब लगेगी देन पीपल विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग. आपके पेरेंट्स जो आज आपको बहुत प्यार करते हैं, दे विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग. अच्छा मैंने तेरी पढ़ाई पे इतने पैसे लगे, अच्छा तूने क्या जॉब कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है. वहां पर जाके भी आप लड़ते रहोगे कि कैसे मर्जी मैं जाके इंप्रूव होऊं, कैसे मर्जी जाके मेरी सैलरी बढ़े, कैसे मर्जी जाके मेरी ग्रोथ हो. और अगर आप वो नहीं कर रहे, आप बिजनेस में हो, तो 3rd ईयर के बाद अगर आपने कोई भी काम करना है, आपको किसी ना किसी से पैसे तो लेने पड़ेंगे, या पेरेंट्स से या किसी फैमिली से. जैसे मेरे केस में मेरे फ्रेंड्स के फादर्स ने बहुत हेल्प करी. तो देन फ्रॉम द डे 1 यू बिकम आंसरेबल टू देम. तो आप जो भी पंगा लोगे, मतलब आफ्टर 3 years इट विल बी लाइव मोड. जैसे हम कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो एक होता है टेस्ट मोड, एक होता है लाइव मोड. सो यू आर राइट नाउ इन टेस्ट मोड. बट वंस यू गेट आउट ऑफ कॉलेज एंड यू गो इनटू लाइव मोड, योर एवरी डिसीजन विल हैव रियल कॉन्सिक्वेंसेस. मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, जैसे आप कुछ भी शुरू करोगे, आपने जो लोन लिया है, आप लोन लेने के बाद साल बाद ये नहीं बोल सकते यार कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे सही नहीं लग रहा, आई विल हैव टू डू समथिंग एल्स. मैं इतने लोगों को देखता हूँ, कभी कोई ट्यूशन सेंटर को शुरू करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, उनके बीच में फिर कोई पार्टनरशिप के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका बिजनेस फेल हो जाता है. और इवेंचुअली कहते हैं यार मेरा 10 लाख लग गया, मेरा 15 लाख लग गया, 5 लाख लग गया, मैं अभी तक उसकी किस्तें भर रहा हूँ, नया मैं कुछ शुरू नहीं कर पा रहा. मेरे पापा ने मेरे पे एक बार ट्रस्ट करा था, उन्होंने 10-15 लाख लगाए. अब वो जब से मैंने वो फेल करा है, मेरे से नहीं चल पाया, तब से पापा मुझे दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे. मुझे जबरदस्ती पापा की शॉप पे जाके बैठना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा. सो दिस ऑल हैपेंस जब तुम टेस्ट टाइम पे टेस्टिंग अच्छे से नहीं करते. अभी ये 3 साल है अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को मैनेज करना, खुद नए नए स्किल्स सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन.
अगर अभी नहीं करोगे तो हम टेलिंग यू बाद में आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, बाद में फिर आप इमोशनल मैस बन के घूमते रहोगे। और लुधियाना में बहुत लोग इमोशनल मैस है, बहुत लोग। लेट मी टेल यू, आई डील विद अ लॉट ऑफ पीपल इन लुधियाना एंड one of the best cities for business, one of the best people here, but a lot of people, lot of students, lot of children have this problem only यार कि मेरे को घर पे डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है। मैं मतलब दे आर मल्टी मिलियनर फैमिलीज के बच्चे हैं, बट दे आर लाइक यार कि मैं चाहकर भी अपने पापा को नहीं सरपास कर सकता, मैं कुछ इनोवेशन नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज जब उनका टेस्टिंग का टाइम था तब उन्होंने ऐश करी। तो पहली बात तो ये जरूर फोकस रखो दैट यू आर इन एक्सपेरिमेंटल मोड। You need to learn about life and enjoyment। जो आप सोचते हो या जो हम ऐश करने की सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली साथ में होती है, उसके लिए आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है व्हेन आई टेक सेमिनार्स आउटसाइड। आपके साथ मैं बहुत नेचुरल बातें कर रहा हूँ, आई हैव नॉट लाइक ट्राई टू प्रिपेयर समथिंग और कि वो कैसे, जस्ट लाइक कि सारे मेरे छोटे भाई बहन हो। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि हम ऐश करना चाहते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द मोमेंट यू मेक फन और ऐश योर इंटेंशन, फिर वो नहीं होती है, उसमें मजा नहीं आता। बट व्हेन यू हैव थिंग्स टू डू इन लाइफ, व्हेन यू हैव समथिंग टू डू इन लाइफ, व्हेन यू आर फोकस्ड, गोल ड्रिवन, कुछ करने की ट्राई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एंजॉयमेंट होती रहती है। क्योंकि एंजॉयमेंट करने के लिए आपको 24 घंटे नहीं चाहिए, एंजॉयमेंट करने के लिए दिन का घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऑटोमेटिकली एंजॉयमेंट होती है, नहीं तो मजा नहीं आता। कितनी सहेलियां बना लोगे, कहाँ कहाँ घूम लोगे, कितने टूर मार लोगे, कितने ट्रैवल कर लोगे, बट अगर आप साथ साथ कुछ काम कर रहे हो तो उनका भी मजा आता है। और ये बात आप देखना कि आपके अगर छोटे भाई बहन हो या आप खुद भी इंटेलिजेंट हो, अगर हम स्कूल टाइम में, क्योंकि पढ़ाई होती थी और तो कुछ होता नहीं था, कि अगर हम पढ़ाई अच्छे से करते रहे तो हम एंजॉयमेंट भी बड़े मजे से करते थे। तो और अगर तुम्हारे नंबर सही नहीं आ रहा तो हमें ना खुद ही गिल्ट होता रहता है कि यार कि हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, मजा नहीं आ रहा। सो कॉलेज में योर प्राइमरी फोकस शुड बी टू एक्सपेरिमेंट, जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड डू नॉट ओवर प्रेशर योरसेल्फ कि मुझे अभी ही करियर चूज करना है, मुझे अभी ही फाइनल करना है मैंने क्या बनना है, मुझे अभी ही ये सब करना है कि नहीं मेरा किस लाइन में जाना है। क्योंकि अभी से उनको हो जाता है कि यार कि हमने एक डिग्री चूज कर लिया है, एक कॉलेज चूज कर लिया है, मेरे पापा के पैसे लग गए हैं, अब तो मुझे इस लाइन में कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अ डिग्री लाइक बीबीए और अ डिग्री लाइक बीकॉम, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि बीबीए के हो आप या बीकॉम के हो, तो एनी वन ऑफ देम, कोई भी आप, ये कॉमर्स की डिग्रीज में सबसे अच्छी फ्रीडम है कि आप कल को कुछ भी शुरू कर सकते हो। इट इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर डूइंग डॉक्टर्स, MBBS और पीपल हु आर डूइंग नॉन मेडिकल और बीटेक, उनको फिर इशू आता है टू चेंज देयर स्ट्रीम, और मोस्टली वहां से भी लोग बिजनेस मैनेजमेंट में भी जाते हैं। बट विद यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आपको वर्ल्ड स्किल्स, बिजनेस स्किल्स बहुत इजीली सीखने को मिलेंगे। और नंबर 2 ये कि आपके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम है टू एक्चुअली एक्सप्लोर योरसेल्फ, लोगों के पास वही नहीं होती। एक MBBS का बच्चा सुना, Milind, please unmute yourself. मेरा भी कोई माइक म्यूट कर देता है। You can carry on now. Okay. So thing is कि एक MBBS के बच्चे के लिए बहुत हार्ड होता है वो। मैं तो रेगुलरली लोगों को मिलता रहता हूँ, और इतने बार मैं लोगों को मिलता हूँ, कोई MBBS है, कोई बीटेक है, कोई कुछ कर देर लाइक यार कि मैं अब कहाँ जाऊँ बीच में छोड़ के, कि अब मेरे को लग रहा है कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूँ या मैं अपना को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट उनको उतना टाइम ही नहीं होता। तो you are the one of the luckiest lot that you are in one of the very good colleges, you are one of the very good streams that you can actually experiment with yourself. Up, since we have covered that page, that we need to have that attitude, that we need to learn right now. Next 3 years, we need to learn about life. We need to deal with people. We need to learn how to talk. We need to learn कि किसी से बात करते हो अपने आइडियाज उसके मन में कैसे रखवाने हैं, कि किसी से डील कैसे करना है, अगर आप कुछ चाहते हो करना, हाउ टू गेट इट डन। ये सबसे बड़ा स्किल है, और इस पे वर्क करने को कॉलेज से ऊपर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता। You can manage events, you can create events, you can learn to convince people, you can learn to sell your idea, you can learn to do whatever you want to do. और क्योंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड में भी यही है, सिर्फ वही लोग कामयाब हैं जो लोग, सपोज करो कोई किसी के मन में आइडिया आया, कोई कुछ करना चाहता है, एंड दोज पीपल आर एबल टू एग्जीक्यूट इट। आइडियाज बहुत लोगों के पास आते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, आइडियाज आपको बहुत ज्यादा आते हैं, तो आई एम टेलिंग यू दैट इज यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज नए नए आइडिया, नई नई बातें करते रहेंगे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते।
because in the coming world the real value is of execution. Ideas सबके पास है, because as I told you, everyone is intelligent, but how are you able to execute it, how are you able to work on it, how are you able to focus on it, तभी वो चीजें फ्रूट लाती हैं और तभी people will actually able to support you. हर बंदे की वैल्यू उसी हिसाब से होती है कि वो जो सोचता है या जो वो करना चाहता है वो इवेंचुअली उसको आइडिया को लाकर, उसको प्लान बनाकर, उसको लिटरली फाइनल एग्जीक्यूशन पे कैसे लेके आता है. क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को मनाना पड़ता है, जो चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करना पड़ता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं. जैसे हम बीबीए में भी लर्न करेंगे अभी आने वाले टाइम में कि कभी भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मनी इज जस्ट वन ऑफ देम. और इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब देश है, तो हमें भी हर बार, और ऑनेस्टली जब मैंने हमें शुरू करी थी मेरे को भी पहले 2-3 साल में इसी मेंटल से नहीं निकला. मुझे लगता था नहीं यार कि पैसे काश होते, काश पैसे ज्यादा होते, काश पैसे ज्यादा होते, बिकॉज आई स्टार्टेड विद जीरो मनी. मैं चंडीगढ़ में सेल परचेज बाइक्स की करता होता था. मैंने एक बात नोटिस करी थी अपनी लाइफ में, पक्की बांध ली थी कि मैंने 18 साल के बाद घर से पैसे नहीं लेने. मुझे पता नहीं क्यों फील होता था यार कि अगर आप घर वालों ने आपको इतना बड़ा कर दिया उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है. और ऑनेस्टली घर वालों के पास ज्यादा पैसे थे भी नहीं. आई कुड सी, मैं छोटे होते से इन्वॉल्व रहता था कि घर पे क्या सेल कर रहे हैं, कितना बिजनेस चल रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या खर्चे हैं, क्या नहीं है. सो आई ऑलवेज हैड एन आइडिया कि एक्सपेंसेस और इनकम कैसे मैनेज हो रही है. बट आई ऑलवेज, मुझे पता था कि मेरे घर वालों का मेरे पे पैसे लगाना कितनी बड़ी चीज है. तो मुझे था कि 18 साल के बाद अगर वो फीस दे रहे हैं, एडमिशन करा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है. बट मैंने अपने खर्चों के पैसे नहीं लेने. सो आई ऑलवेज हैड समथिंग टू हसल ऑन. और मेरे को कार्स का बहुत सारा शौक है. मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है बकवासा, जो मैं बहुत कम चलाता हूँ, बट वो भी मतलब इट इज गुड. 45,000 सब्सक्राइबर्स है उस पे, बट वो टोटल वेलियां मारता हूँ उस पे. तो मैं तब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मैं कोई सस्ती सी बाइक खरीद के उधार लेके, जैसे मैंने पहले इंस्टॉलमेंट्स पे फोन लिया था, फिर वो फोन गिरवी रख के मैंने किसी पैसे लिए, मैंने करिश्मा बाइक खरीदी टूटी हुई, उसको सारा ठीक कराया, फिर उसको महंगा बेच दिया, फिर वो महंगा बेचा और लोन के पैसे वापस ले लिए. सो दीज वर द स्मॉल थिंग जहां से बिजनेस सीखना आ गया. फॉर एग्जाम्पल 12,000 की मैंने एक टूटी हुई करिश्मा ली थी. मेरे पास तब 14-15,000 का फोन था, तो मैंने वो सेल करा, 15,000 लिए, 15,000 से 11,000 का वो बाइक खरीदा, उस पर 4-5,000 लगा के उसको ठीक कराया, फिर उसको 25,000 का बेच दिया. तो 25,000 का जब बेचा तो मैंने फिर से वो 14-15,000 का फोन लिया और 10,000 मेरे पास प्रॉफिट आ गया. तो ये छोटी छोटी चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा. इवन फाइनली जब मैंने हमें भी शुरू करी 3rd ईयर तक, एंड ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज था. मैं अपनी लाइफ में बहुत प्रेशर में रहता था, और क्योंकि आप सब लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे हमेशा होता था यार कि मैं हमेशा से स्कूल में मॉनिटर रहा हूँ, हमेशा से स्कूल में इंटेलिजेंट रहा हूँ. यार मुझे, अगर मैं लाइफ में पीछे रह गया तो मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल जाएंगे, मेरे यार दोस्त तो बहुत पढ़ जाएंगे. और वो पहले से ही मतलब उनकी पेरेंटल बैकिंग भी अच्छी थी, और क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ा था तो मेरे को होता था नहीं यार मेरा लाइफस्टाइल भी बेटर होना चाहिए. मुझे होता नहीं मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा बाइक होना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली तुम जैसे चीजों में पले बड़े हो, जैसी कंपनी होती है, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी वैसा हो जाता है. तो मुझे हमेशा से ये था, बट ये भी एथिकल था कि मैंने घर वालों से नहीं कुछ मांगना, क्योंकि उनका देना नहीं बनता, ये मेरे ऊपर है. तो आई ऑलवेज दिस थॉट कि नहीं, आई हैव टू मैनेज थिंग्स माई सेल्फ, एंड दिस थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिजायर्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर आई वॉन्ट टू गो इन माई लाइफ. इस थॉट ने मुझे हमेशा पुश करा, और इस थॉट ने हमेशा मेरे दिमाग को कहीं ना कहीं चलाने में फोकस करता ही रहा. मैं कॉलेज के टाइम से भी ये सोचता था नहीं यार मैंने अपना खर्चा खुद निकालना है. और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर तुम सोचो तो निकल जाता है. 1000 रास्ते हैं आज की डेट में पैसे कमाने के, 1000 रास्ते हैं. और जरूरत ये नहीं कि तुम्हें पैसे की जरूरत है या नहीं जरूरत है, बट ये कि जब तुम वो करते हो तो तुम सीखते कितना कुछ हो, ये बहुत मैटर करता है. बड़े सारे लोग बोलते हैं यार कि हमें स्टार्टअप लाइन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. मैं कहता हूँ दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए ही रॉन्ग है. बिकॉज जिस भी बेस्ट लाइन में आप जाओगे, आज की जो बेस्ट लाइन होगी वो शायद 7-8 साल बाद सबसे बकवास लाइन हो जाए. तो ये एक पीक टाइम आता है, एक चीज आती है कि अभी ये चीज चल रही है, उसके बाद दूसरी चीज चल रही है, उसके बाद तीसरी चीज चल रही है. तो मैं कहता हूँ यार कि स्टार्टअप को अब लाइन मत बोलो. पॉइंट इज दैट यू, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट हैविंग एन आइडिया कि हाँ यार कि मेरे को एक मतलब फाइंडिंग अ ब्रोकन वैल्यू चेन. फाइंडिंग अ ब्रोकन वैल्यू चेन मींस यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये बंदा परेशान है और ये बंदा भी परेशान है. अगर इसके बीच में मैं कोई सिस्टम लगा दूं, कोई प्रोसेस लगा दूं, किसी पर्टिकुलर तरीके से मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो आज ये बंदा जो पैसे पे कर रहा है ये वाले सोल्यूशन के लिए, और फिर भी उसकी प्रॉब्लम उतनी सॉल्व नहीं हो रही, और अगर मैं इस ऐसा सिस्टम से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा सिंपल कर दूं, बेटर कर दूं, एंड ही विल बी एबल टू पे इवन लेस, तो इट इज अ वैल्यू ब्रोकन वैल्यू चेन. तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वेरी बेसिक, आज से 6-7 साल पहले, और मैं तब अरविंदो में ही था जब ओला आई थी लुधियाना में. अच्छा पहले आपको बता दूं कि काफी लोगों को यही नहीं पता कि ओला वाला बंदा लुधियाना का है. आई एम श्योर आपको काफी को पता होगा.
सो BRS नगर में डॉक्टर निकेश अग्रवाल का जो हॉस्पिटल है, उनका बेटा है भावेश अग्रवाल, वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, हमारे मेरे और आपके जैसा बंदा ही है, और ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल फ्रॉम लुधियाना नाउ। और मेरा भी कजन आया न्यूजीलैंड से, एंड ही वाज टेलिंग मी यार कि न्यूजीलैंड में ओला ने मचा रखी है, कहते वहां पर 3-4 कंपनीज थे, कहता उनकी भी उन्होंने बैंड बजाई पड़ी है। सो सी इन जस्ट 10 years ऑफ टाइम फ्रेम, एक आपके मेरे जैसा बंदा फ्रॉम द स्कूलिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम, ही रीच कहां पे पहुंच गया वो, क्यों पहुंचा? बिकॉज ही फाउंड अ ब्रोकन वैल्यू चेन फर्स्ट। ही रियलाइज्ड, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले एक मेगा कैब्स करके लुधियाना में कैब चली थी, इंडिका उन्होंने रखी हुई थी, कम से कम 25-30 कैब्स थी। अब सोचो एक बंदे ने 25-30 कैब्स खरीदी, अगर एक गाड़ी को हम सपोज करो 8 लाख की वैल्यू भी लगा ले या 10 लाख की लगा ले फॉर बेटर मैथ्स, तो उसने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, 2.5 CR, वो कार्स खरीदी, ड्राइवर हायर करे, उनको सैलरी दी, और ड्राइवर्स को भी पर मंथ पे कॉस्ट पे रखा, एंड देन उन्होंने फिर मार्केटिंग पे खर्चा करा कि यार कि आप ये कैब की सर्विस यूज कर सकते हो, आप फोन करो इस नंबर पर, और फिर कॉल सेंटर रखा कि आप फोन करो तो कॉल सेंटर वाला बंदा आपको आपकी कैब देगा, आप कैब से यहाँ से पिकअप होकर दूसरी जगह ड्रॉप हो सकते हो। अब रियलाइज करो कि कितना बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी कार्स पे रेगुलर आपको सेल नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही, तो आप कितने बड़े लॉस में जाओगे। और दूसरी बात, वो जो ड्राइवर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आपकी कार का ख्याल रखने में, वो कहेगा ठीक है जी, मेरे को मालिक ने गाड़ी दी है, उसको कौन सा पता लग रहा है, मैं अपनी मर्जी मारूंगा। वो गाड़ी टूटती थी, बजती थी, उसकी सर्विस नहीं होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती थी, और चार्जेस भी बहुत हाई थे। बट उस हाई चार्जेस के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम क्या थी, लोगों को बताना पड़ता था कैब वाले को कहाँ पे आना है, लोगों को प्री बुकिंग करानी पड़ती थी। फिर तीसरी बात कि जो बिजनेस ओनर था उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, और ऑब्वियसली वो 6-7 महीने में कंपनी बंद हो गई, 6-7 महीने में उनकी टूटी हुई गाड़ियां इधर उधर बिकती हुई मिली, और उसके कितने पैसे वेस्ट हो गए। सिमिलरली एक बंदे ने रियलाइज करा यार कि हम इसमें टेक्नोलॉजी लगा के, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ही है, उसको पता लग गया यार कि लोकेशन भी आने लग गई है, जीपीएस भी चलने लग गया है, ये भी हम कर सकते हैं। और दूसरे उसने रियलाइज करा यार लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, किस्तों पे लोग कार ले सकते हैं यार, कि मैं रादर देन फिक्स्ड मंथली कॉस्ट पर एक कार रखने की बजाय और एक ड्राइवर रखने की बजाय, अगर मैं लोगों को एम्पावर करूं यार कि आप अपनी कार लेकर ऑनलाइन हो जाओ, जब आप ऑनलाइन होगे आपको राइड्स डलती रहेंगी, और मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूं जिससे जिसको राइड चाहिए और जो राइड दे सकता है वो लोग कनेक्ट हो जाए बस, और उनके बीच में जो भी वैल्यू ट्रांजैक्शन हो उसकी कमीशन मेरी इनकम। अगर ट्रांजैक्शन हो तो ठीक है, नहीं ट्रांजैक्शन हो तो नहीं है, ट्रांजैक्शन हुई तो इनकम, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ। इस नॉर्मल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले उन्होंने समझा कि हाँ यार यहाँ पर एक हिडन वैल्यू है, उसके बाद फिर उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, वो सेकंड स्टेप है। सिमिलरली हमें में भी मैं यही सोचता हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म, और मैं भी कहीं ना कहीं ओला से इंस्पायर्ड था कि एक प्लेटफॉर्म बने कि ओला में तो सिर्फ आप एक कार वहां पर दे सकते हो कि यार कि मेरे पास आज कार है, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, कि मैं किसी को टैक्सी राइड दे सकता हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज यार कि व्हाई कैन नॉट दिस प्लेटफॉर्म बी यूनिवर्सल। अभी इंडिया में आज भी हम ऐसे चल रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटल डिफरेंस बहुत है। फॉर एग्जाम्पल आज आपको अगर आप खुद डिलीवरी करवा रहे हो, इट इज वेरी अनलाइकली कि आप अगले दिन डिलीवरी कर रहे होगे, बट इन कंट्रीज जहां पर सोसाइटल डिफरेंस नहीं है वहां पर दिस इज वाइस वर्सा। जैसे आज अगर आप लोग अपनी गाड़ी पे उबर चला रहे हो, आज मैंने राइड करी, तो फॉर एग्जांपल संजय सर एंड मी आर लिविंग इन दिस सिटी एंड ही इज अ प्रोफेसर, आई एम डूइंग माय बिजनेस, और हम अपने ऑफ टाइम पर उबर चला रहे होते हैं। तो सपोज करो आज मैंने उबर राइड करी, तो संजय सर मेरे पास आए, मैं उनकी उबर में बैठा और हम चले गए, तो मैंने उनको पैसे दिए, वो पैसे का 20-25% उबर ने लिया, बाकी उन्होंने अर्न करे, तो वो भी साइड इनकम अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट डे उनको उबर चाहिए, वो अपनी उबर आप खोल के उबर करते हैं, तो मैं उस दिन अपनी गाड़ी लेके उबर कर चला रहा हूँ, तो मैं उनको मिलता हूँ, वो मेरे को मिलते हैं, वो मेरे को पैसे देते हैं, और दिस ट्रांजैक्शन हैपेंस। सो बाहर वाली कंट्रीज में ऐसे ही होता है, कोई सोसाइटल डिफरेंस नहीं है। तो इवन हमें में भी मेरी यही सोच है, और इंडिया में भी वो चीज कवर हो जाएगी। अभी आप देख लेना, काफी यंगस्टर्स, कॉलेज के बच्चे हैव कम टू मेक देयर मनी थ्रू जोमेटो, थ्रू स्विगी, थ्रू हमें, और हमारे पास भी काफी बच्चे पार्ट टाइमर्स हैं जो कभी भी ऑनलाइन हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं, टास्क मिलते हैं, वो टास्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें हमारी कमीशन देते हैं, एंड देन दे गो होम। सो हमारा मॉडल भी यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे एनी पर्सन हु नीड समथिंग एंड एनी पर्सन हु कैन प्रोवाइड समथिंग can actually be connected through that platform and a transaction can happen. And honestly telling you, this is not static. For example, किसी भी टाइम एक बंदे को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है और वो बंदा उसको हेल्प कर सकता है, और किसी भी टाइम वो चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स पीपल रियल टाइम फॉर डिफरेंट नीड्स ऑफ हेल्प्स, दैट इज व्हाट आई मेड। अभी बहुत दूर है जहां पर हमने पहुंचना है, अभी हेल्थ केयर सर्विसेज भी लानी है, एम्बुलेंस भी लेके आनी है, बड़ा कुछ करना है, टाइम लग रहा है नो डाउट। 5 साल हुए हैं अभी, 5-6 साल और लग जाएंगे, 10 साल आराम से किसी भी कंपनी को बड़े होने में लगते हैं। पहले 2-3 साल तो मैं भी बहुत हाइपर रहता था कि यार कि हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे, दूसरे लोग, दूसरी कंपनियां कितनी जल्दी बड़ा बन गई। बट देन आई रियलाइज्ड कि
आई हैव टू गो थ्रू द राइट लर्निंग। और पहले ना मैं एक्सपीरियंस लेता था कि यार कि वो देखो 3 साल में स्टार्टअप कहां से कहां पहुंच गया, वो 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया, वो 2 साल में कहां से कहां पहुंच गया। देन आई रियलाइज कि जब मैं उनकी फाउंडर की स्टोरीज पढ़नी शुरू करी तो मैंने रियलाइज करा यार कि वो बेचारे अपने 10 से 12 साल में ही है। वो पहले एक स्टार्टअप फेल कर चुके हैं, फिर दूसरा करते हैं वो फेल कर चुके हैं। विद एवरी फेलियर कम्स अ ग्रेट लर्निंग, कम्स अ ग्रेट लर्निंग। तो उसके बाद कहीं ना कहीं 10-11 साल तक आके उनको रियलाइज हुआ कि हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। और फिर भी जब वो 32-33-34 साल में एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर पाए तो भी उनकी बहुत बड़ी ग्लोरी थी कि यार कि वो सक्सेसफुल हो पाए। आप विजय शेखर शर्मा की बात करो, किसी और की बात करो, सबके पता नहीं वो 9वें-10 से स्टार्टअप है। उससे पहले लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करके फेल कर चुके हैं, तो उससे लर्न करते हैं, फिर कुछ नया करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपका कॉस्ट ऑफ फेलियर भी बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपका कॉस्ट ऑफ फेलियर सबसे कम है, आज आप दुनिया के सबसे ज्यादा पंगे ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर इवन डूइंग समथिंग। और अगर आप आज नहीं कुछ करोगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि जब आप बाद में शुरू करोगे आपका कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत हाई हो जाएगा। तब लोग आपको ऐसे देखेंगे, आपके पापा भी, अच्छा की कर रहे हैं, कितने पैसे बने, अच्छा कुछ बनया की नहीं बनया। एंड एवरीवन, इवन एवरीवन एल्स आल्सो, दे विल स्टार्ट जजिंग यू। अच्छा हुन तू 25 साल दा हो गया, बाकी तो नाल वाले इन्ने कमा रहे ने, हुन तू 26 दा हो गया, हुन तू 24 दा हो गया, हुन तू 28 दा हो गया, बाकी तो इन्ने कमा, तेरे काम दा की बनया। आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाते तब। आपको होता क्या यार इतना बड़ा प्रेशर है मेरे पे, और वो प्रेशर आने लग जाता है। तो यही टाइम है दुनिया के सारे पंगे लेने का, जो भी मन में है करो, कुछ भी है करो, बट करो जरूर। तो नंबर 1 तो ये कि वी हैव टू वर्क विद दिस एटीट्यूड एंड हाउ इवन माय एटीट्यूड हेल्प मी इन दिस। नंबर 2 जो बहुत लोगों को नहीं पता, आई एम गोइंग टू टेल यू सम सीक्रेट्स जो दुनिया को बहुत टाइम लगता है समझने में। एंड आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ पीपल, तभी एक प्रॉब्लम है। अब देखो आपके आसपास कितने दुनिया होगी जो अपने मन में एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, बट रियलिटी उनकी बिल्कुल और है। अगर आप खुद भी पर्सनली डिसाइड करो, आप सोचो यार कि मैं, मतलब कितने लोग ऐसे प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं कि मैं अगले 2 महीने में ऐसे कर लूंगा, 3 महीने में ये कर लूंगा, मैं 15 दिन में ये कर लूंगा, हफ्ते में ये कर लूंगा, कल मैंने रूटीन अपनी ऐसे कर लेनी, परसों ऐसे कर लिया, तीसरा दिन ऐसे कर लेनी है, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। और इवेंचुअली वैसी लाइफ बन जाती है कि तुम अपने मन में बहुत सक्सेसफुल हो, अपने माइंड में तुम्हें लगता है मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लान्स बहुत सारे हैं, बट तुम कर नहीं पाते। और तब इवेंचुअली, बिकॉज वर्ल्ड आस्क्स फॉर रिजल्ट्स, विदाउट एक्शन in your mind, no one is going to say that you are a smart person, you are intelligent or you are successful. Only action matters. अगर आज 5 साल पहले जब मैं औरबिंदो में था और मैं अपने टीचर्स को बोल रहा था कि मैम, आई स्टार्टेड हमें व्हेन आई वाज इन 3rd year in college, and I was talking to my teachers कि मैम, आई एम नॉट एबल टू कम टू कॉलेज बिकॉज आई स्टार्टेड दिस थिंग, आई रियली वांट टू फोकस ऑन इट, आप प्लीज आप मेरी अटेंडेंस का इतना इशू ना डालो। एंड दे वर वेरी क्लियर कि नहीं यार, अटेंडेंस तो बहुत जरूरी है। नो डाउट अब एटीट्यूड सबके चेंज हो गए हैं, बट तब व्हाई दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, बिकॉज तब तक मैंने कुछ एक्शन नहीं करा था। आज 5 साल बाद मेरे को यहाँ पर सेमिनार के लिए बुलाया गया, क्यों? क्योंकि मैंने जो सोचा और जो करना चाहा वो कर कर प्रूव करा। जब तक तुम्हारे पास एक एक्शनेबल चीज नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने ये सोचा और मैंने कर दिया, तब तक डू नॉट एक्सपेक्ट वैल्यू और रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। नहीं मिलने वाली। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज सबका माइंड दिन में बहुत कुछ सोचता है। दैट इज नॉट वैल्यूएबल। मेरे को आज भी लोग बोलते हैं ये तो मेरा आइडिया था, हमने भी ऐसा करना। जब मैंने शुरू करा तब से लोग बोलने लगे थे ये करना था, वो करना था। एंड आई थिंक इट्स वेरी ओके। अभी जो हम कर रहे हैं वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो आइडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द एक्शन दैट यू डू, वो मैटर करता है। एंड the main secret that I'm going to share with you, the main reason why people are not able to act on it, or why people are not able to actually produce results, because they do not know the concept of energy. लोगों को नहीं पता है ये बात कि एनर्जी क्या होती है। लोग ये नहीं समझते कि हमें अपनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी चाहिए टू एक्चुअली वर्क ऑन व्हाट आई हैव थॉट। और ये लोग नहीं सोचते। लोगों को लगता है यार मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, आई शुड बी एबल टू डू थिंग्स। आई एम टेलिंग यू। और लोग इस चक्कर में सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, सेल्फ जजमेंट में चले जाते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। उनको लगता है यार कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट था, मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे से वो क्यों नहीं हो रहा, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। वो अपने रिलेशनशिप्स नहीं मैनेज कर पाते, अपनी फैमिली नहीं मैनेज कर पाते, अपना बिजनेस नहीं मैनेज कर पाते, अपनी पढ़ाई नहीं मैनेज कर पाते, ओनली बिकॉज they do not focus on improving their energy. And this is not just for you guys at this age, this is for everyone. This is one thing that I share with everyone. अब तक जो मैंने आपसे बात करी, that was focused because you are first year college students. But now what I'm going to talk, मैं अपने पापा से भी 2-4 दिन से बात कर रहा हूँ कि it's all about energy management. Do not see people as individuals, see people as just levels of energy. आज मैं मिलिंद क्वात्रा
अगर सपोज करो 2015 में मैंने हमारी शुरू करी, मैं तब अपनी एनर्जी पे बहुत वर्क करता था. आई यूज्ड टू डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ मैं, एंड आई यूज्ड टू डू इट रेगुलरली. मैं रोज अब घंटा अपने आप को देना, एंड आई यूज्ड टू वर्क वेरी एग्रेसिवली. लोग कहते थे यार कि तू इतनी एनर्जी कहां से लाता है यार, हाउ यू आर एबल टू डू इट, बट आई वाज कीपिंग ऑन. मैंने आइडिया सोचा, उस पर इंप्लीमेंट करा, वो कर दिया. आई हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू थिंग्स, बट देन अ फेज केम इन माय लाइफ वेयर आई स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन एनर्जी. But I was like, नहीं कोई बात नहीं, अब ये तो कर लिया, कुछ नहीं होता, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. एंड देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ फेलियर. जो चीजें मैंने पहले अचीव करी, मेरे से सब कुछ होना बंद हो गया. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, फिर मैं एक नए उसमें चला गया कि यार कि हाय मैं वही बंदा हूँ, मेरे से ये भी होता था, अब मेरे से कुछ भी नहीं होता, मैं नालायक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल फेल हो गया हूँ, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, मेरे से ये भी हो गया, मेरे से वो भी हो गया, मेरा ये भी ब्लंडर हो गया. वाई? बिकॉज आई स्टॉप फोकसिंग ऑन एनर्जी. एंड दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जाम्पल, मैं आपको अपना छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. और मैं अब लुधियाना के वन ऑफ द बेस्ट लोगों के साथ उठता बैठता हूँ. लुधियाना तो बहुत छोटा, चलो आई हैव वेरी गुड कनेक्शन इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन कनाडा, इन एवरीवेयर एल्स वेयर बिजनेस मीटिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, जहाँ पर मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बैठते हैं, सब कुछ करते हैं. ऑल द ग्रेट पीपल हु आर रनिंग द शोज, हु आर रनिंग द ग्रेट कंपनीज, सब में एक ही बात सबसे कॉमन होती है कि दे स्पेंड एन आवर ऑन देमसेल्व्स डेली ऑन मैनेजिंग देयर एनर्जी. अगर वो हम नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते. एंड यू नीड टू लर्न अबाउट एनर्जी, कि हाउ एनर्जी इंक्रीजेस, हाउ एनर्जी डिक्रीजेस. आज एक्स बंदा, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है, वो दुनिया का बहुत अच्छा बंदा होगा, सब कुछ करता होगा. और वही एक्स बंदा अगर उसकी एनर्जी लो हो चुकी है, उसने अपनी एनर्जी पे नहीं वर्क करा, तो दुनिया का सबसे बकवास बंदा होगा. वही बंदा तो एक टाइम भगवान होता है, वही बंदा कभी बिल्कुल बकवास बंदा भी बन जाता है. दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर्स करता है, सबसे बड़ी गलतियां करता है, सबसे बड़े नुकसान करता है, अपना भी नुकसान करता है, लोगों का भी नुकसान करता है, ओनली बिकॉज he stops managing his energy levels. हम अपनी रूटीन खराब कर लेते हैं, एनर्जी खराब कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक बातें बताता हूँ. रात को लेट सोने से, सुबह लेट उठने से एनर्जी लेवल खराब होता है. दैट इज द रीजन पुराने जमाने के लोग हमें बोलते हैं सुबह जल्दी उठो. पॉइंट इज उनको लॉजिक नहीं पता, क्योंकि तब सारे जल्दी उठते थे. तो उनको ये फील होता है यार कि क्योंकि हम सारे जल्दी उठते थे, आज के बच्चे नहीं जल्दी उठते तो कोई तो प्रॉब्लम होगी. बट द रियल रीजन इज आपका एनर्जी लेवल खराब होता है. एंड आई थिंक यू शुड ऑल learn something about Ayurveda, learn something about how your body works, learn something about how your mind works. Because in this world, everything is about to start something from the mind and body. Body कम, mind ज़्यादा. और हमें यही नहीं पता कि इनको मैनेज कैसे करना है. हमने 12 साल अपने स्कूल लाइफ में, फर्स्ट से लेके +2, मैं प्री के एलकेजी यूकेजी नहीं इंक्लूड कर रहा, फर्स्ट से लेके +2, वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, वी हैव लर्नड इन्फॉर्मेशन, वी हैव रेड बुक्स, learned about the world, then gave exams on it to make sure that we have learned it. But the real education to be successful in life is how to manage your energy and manage your mind. And I'm telling you, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर बंदा आखिर में इंटेलिजेंट है, बट तुम अपना माइंड कैसे मैनेज कर पाते हो, उससे पता चलता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो. आज एंजाइटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है. एंजाइटी क्या होती है? आपको कभी भी कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, या कभी भी लगता है यार इस चीज से मेरे को डर हो जाएगा, ये चीज से मेरे को कुछ इफेक्ट हो सकता है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आपके शरीर कांपने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाता है, पैर कांपने लग जाता है, पैनिक अटैक आने लग जाता है, आपको लगता है मैं भाग जाऊं. वो पैनिक अटैक क्या होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी. और एंजाइटी क्यों होती है? बिकॉज हमारी एनर्जी लो होती है. हमें अपने से छोटी छोटी प्रॉब्लम में हमें लगता है यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा. और अगर आपका एनर्जी लेवल ठीक है, आपको वही दिन की इतने चीजें, इतनी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे चैलेंजेस, आपको लगता है यार ये कुछ भी नहीं. इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, एंड पर्सपेक्टिव चेंजेस विद योर एनर्जी लेवल्स अलोन. आप सोचकर, बुकिश किताबें पढ़कर कुछ भी अपने लाइफ के बारे में चेंज नहीं कर सकते. ये मेरे से लिखवा लो. Everyone who wakes up at 6 or 7 in the morning, who is committed to go and work out, do some exercises, take some time off, if you can do yoga, perfect. And I'm telling you, all those people, आप खुद भी देखते होगे, जो लोग अपनी लाइफ में अपने आप को घंटा दे रहे हैं, चाहे वर्कआउट ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को 1 घंटा दिन में दे रहे हैं, उनके एनर्जी लेवल, उनकी चमक, उनकी बात करने का स्टाइल, उनके पूरे दिन में अलग होती है. और जो लोग ये नहीं कर रहे, वो बेचारे मरे मुरे होते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल हाई नहीं होते, और तुम उस एनर्जी से कुछ अचीव नहीं कर सकते. और हमें लगता है यार कि हमारे को जो थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को ना इतने लोग मिलते हैं कहते हैं मुझे ना ये आइडिया आ रहा है, मैंने ये बिजनेस क्रिएट करना है. अगर तो लिटरली उस एनर्जी में होता है तो मुझे समझ आता है नहीं ये सही सोच रहा है. कुछ लोग होते हैं जो रात के सुत्ते पुठे, मतलब इनका, जिन्होंने कुछ नहीं करा होता 2-3 साल से, वो मरे मुरे होते हैं, दिमाग उनके डेड होते हैं, मतलब एनर्जी उनकी, मतलब उनकी शक्ल से आपको लगता है कि मैं भी सो जाऊं, इतनी सुस्ती में होते हैं, मतलब इतना खराब लाइफस्टाइल होता है. वो जो बोलते हैं मेरे को ये आइडिया आ रहा है, मैं ये करूंगा, बंदा कहता है भाई किसी के पैसा ना लगवा, बैठ जा, पहले अपने पे वर्क कर. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव रेज्ड इन्वेस्टमेंट्स, I've gone through a lot of funding rounds, और I'm telling you, only people invest on energy. आप चाहे सेल्स करो, कुछ भी करो,
अब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बिजनेस शुरू करा, मेरे फ्रेंड्स के फादर्स ने मुझे पैसे दिए, एंड आई लेट मी टेल यू, आई वाज जस्ट इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज विद नो बिजनेस बैकग्राउंड. मैंने अब तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा था. मेरे घर वाले कभी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है कि मैं वहां पर कुछ अचीव करके आ पाऊं. बट आई नो व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड टॉक टू हिज फादर, एंड उसके पापा कहते हैं अच्छा मिलिंद है, हाँ कोई बात नहीं, उसको बोल. मैंने मतलब आई वाज लुकिंग आउट फॉर 15 lakhs ऑफ मनी, बट ही सेड कोई बात नहीं, हम 25 लाख दे देंगे, बट ये हमारी टर्म है. और मैं हिल के सुनी हो गया. टिल नाउ आई फील यार कि व्हाट डिड ही सी कि यार कि ठीक है यार मैं ये पैसे लगाने को तैयार हूं. और उस टाइम पे उनके लिए वो पैसे बहुत बड़ी बात थी. ये नहीं था कि यार कि वो बहुत ही उनके पास 200-400 करोड़ ऐसी साइड में पड़ा था, उन्होंने 25 लाख क्या फर्क पड़ता है. इट वॉज अ बिग डिसीजन फॉर हिम, बट वेयर ही इन्वेस्टेड. मैंने उनसे बड़ी बार बात करी, एंड वो यही बोलते हैं, कहते हैं यार कि तेरी एनर्जी लेवल देख के पता लग जाता है यार कि तू कुछ कर लेगा, कि जो तू सोच रहा है तू सही ट्रैक पर चल रहा है, तू कर लेगा. बिकॉज व्हेन यू टॉक, आपकी एनर्जी बात करती है. और अगर आपका एनर्जी लेवल ही सही नहीं है ना, तो आप जो मर्जी बातें कर लो, जितनी मर्जी इंटेलिजेंट बात कर लो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क. आप डिबेट्स में देख लो, डेक्लामेशन में देख लो, आप बंदे का कंटेंट नहीं सुनते हो. कभी भी कोई पब्लिक स्पीकर होता है, आप उसका कंटेंट नहीं सुनते हो. You always get affected by the energy of that person. एलन मस्क है. एलन मस्क जिस एनर्जी के साथ रहता है, वो जिस एनर्जी से लोगों को बोलता है कि मैं अगले 5 साल में ये कर दूंगा, वो उस एनर्जी के कारण ही लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. आज टेस्ला, स्पेसएक्स, आज से पिछले 10 साल के अंदर, they were one of the worst performing financial companies. In every half an hour they were losing $1 million. सबसे ज्यादा लॉस उनकी बैलेंस शीटें सबसे खराब थी. बट क्यों वो सक्सेसफुल हो पाए? बिकॉज पीपल ट्रस्टेड इन एलन मस्क. आज भी वो कुछ जाके बोलता है कि मैं अगले 10 साल में ये कर दूंगा. आज तो आप ये छोड़ो, उसके कहने से स्टॉक मार्केट चलती है. इफ यू नो, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, ट्विटर पर वो ये भी बोल देता ना कि कुछ नाम लिख देता है किसी कंपनी का कि यार कि मैं इसका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं. मतलब वो बंदे अमीर हो जाते हैं जिनकी कंपनी के बारे में बात कर देता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एनर्जी ही कैरीज. अब तो उसने 10 साल में अपनी जो चीजें उसने बोली वो करके प्रूव भी कर दी, तो अब उसके पास एक्सपीरियंस, एनर्जी, सब कुछ है. बट इन बिगिनिंग, फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो अभी जिंदगी में शुरू हुए, मैं भी 25 का हूं, तुम लोग 18-19 के हो, हमारे पास एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है. हम लोगों को अपनी एनर्जी से ही कन्विंस कर सकते हैं. और अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना, बड़ा बनना है, तो वो वैल्यू चेन कंप्लीट करके ही होगा. अगर आज मैं कहता हूँ यार कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं, तो मुझे बिलियनर से ही पैसा आएगा, तो ही मैं मल्टी मिलियनर बनूंगा. कोई पैसा उगा नहीं देता पेड़ से. मैं अगर मल्टी बिलियनर्स के साथ बिजनेस करूंगा, उनसे इन्वेस्टमेंट लूंगा, मैं कस्टमर्स बनाऊंगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, उन कस्टमर से थोड़े थोड़े पैसे लूंगा, तभी जाके मेरे पास पैसा आएगा ना. दुनिया में पैसा जो घूम रहा है वही मेरे पास आना इकट्ठा होगा ना. बट वो कैसे हो पाएगा? विद माई एनर्जी. यू ट्रेड योर एनर्जी फॉर एवरीथिंग. नो मैटर व्हाट यू डू, यू ट्रेड योर एनर्जी. आप एनर्जी देते हो तो आपको पैसा मिलता है, वैल्यू मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, लोगों का ट्रस्ट ही मिलता है, लोगों का पैसा मिलता है, और लोग आप पर बैंक कर सकते हैं. लेकिन बैंक अपॉन यू कि नहीं यार कि व्हाट ही सेइंग ही विल डू इट. तो ये एनर्जी लेवल रखना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर सक्सेस. मुझे पता है अभी अराउंड 100 पीपल ऑनलाइन है. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग. लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी भी लोग अपने खराब लाइफस्टाइल में दे कैन कंटिन्यू. दे आर लाइक कोई बात नहीं, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जितना मर्जी मोटा हूं, मेरे को जितना मर्जी आलस आता है, मैं जितना मर्जी सोता हूं, इट्स ऑल ओके. एंड आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल ओके, कुछ खराब नहीं है. But then don't expect yourself to overperform. If you are not managing your energy levels, if you are not focusing on yourself and learning कि यार कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या मैं कैसे अपने आप को improve कर सकता हूँ, you are not going to reach where you want to reach. You are not going to achieve anything. So stop thinking about this. And anxiety की मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में, it's all about mental health. It's all about mental health. अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओगे आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. बहुत लोग हैं मैं देखता हूँ जिनको अगर नहीं यार कि मैं असाइनमेंट्स बना लूं, पेपर जैसे मर्जी करके दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, रात को रो रहे होंगे, बैंड बजी होगी, कल्ले अंधेरे में उनकी लोगों से बात नहीं करते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, सबको इनसिक्योरिटीज हैं. दिस होल सोशल मीडिया वर्ल्ड ऑफ कि लोग अपनी अच्छाई ही शेयर करते हैं, अपना दुख किसी से बांट के नहीं खुश. तो सबको लगता है यार मैं ही दुखी हूँ, लोग बहुत खुश हैं. तो इस फेक स्टिग्मा के अंदर तुम जितने लोग परेशान हो रहे हो, अब उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है. फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ. और अगर आप नहीं ठीक हो, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. देखो कि नहीं यार मुझे अपने आप को ठीक करना है. मैंने ना जब 8th-9th से था, मैंने एक आदत बना ली थी. मेरे जब भी ब्रेकअप होता था ना, मैं उसके बाद 2 महीना मैं कहता था मैं डिप्रेशन में हूँ, और मैं डिप्रेशन एंजॉय करता था, कुछ नहीं करता था मैं. मुझे याद है फर्स्ट ईयर में मैं अपने मामा जी की फैक्ट्री में चला गया था काम करने पार्ट टाइम, क्योंकि मेरे को था मैंने पैसे कमाने हैं. तो मेरी जॉब लग गई थी कहीं पे और, मैंने कहीं पे जॉब ले ली थी. उन्होंने मेरे को बोला यार तू किसी और के पास कोई काम करा, मेरे पास आ जा. देन ही ऑफर्ड मी डबल सैलरी.
तो मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता था तब। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरा ब्रेकअप हुआ फर्स्ट ईयर के बीच में। मैंने लिटरली झूठ बोल के ना जैसे मर्जी करके, मैं कहा मम्मा को वायरल हो गया, अपने मामा जी को भी झूठ बोल के मैंने लिटरली 10 दिन की छुट्टी ले ली और मैं पूरे दिन सिर्फ GTA 5 खेलता रहा। तब नई नई आई थी उस टाइम, मेरे पास एक्सबॉक्स भी नहीं थी, मैंने अपने दोस्त की एक्सबॉक्स बोरो करी, GTA 5 की सीडी दी और मैं लिटरली पूरे दिन बैठ के, सुबह मैंने उठना 9 बजे गेम लगा लेनी, रात को 11 सुबह मैंने पहले ड्रामे करना। मेरे मम्मा पापा दोनों वर्किंग थे, तो जब तक उन्होंने नहीं जाना मैंने सोना कि मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, ये है वो है। तो जब उन्होंने जाना मैंने पूरे दिन सिर्फ गेम खेली, बिकॉज आई वाज, उस टाइम मेरे लिए वो ठीक था। मतलब उस 9-10 दिन में मैंने बैठ के अपने आप को ओके करा कि कोई बात नहीं, आई डिड नॉट फोर्स माई सेल्फ कि कोई बात नहीं मेरी लाइफ में खराब चल रहा है, मुझे काम करना ही करना है, मुझे ये चीज करनी ही करनी। आई गेव टाइम टू माई सेल्फ और मैं ठीक हुआ। देन आई वाज अगेन बैक एट डूइंग थिंग्स एंड देन आई वाज डूइंग थिंग्स ऑन अ वेरी वेल नोट। और मैं हमेशा से 9-10 से मेडिटेशन कैंप्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ये ज्वाइन करके कुछ ना कुछ रखता ही था, योगा करता रहता था, कुछ ना कुछ करता था, जिससे मेरा एनर्जी लेवल बहुत फर्क पड़ता था। और आज भी आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं अगर डीएवी में था, मेरे जितने के साथ के 250-300 बच्चे थे, तो आई एम एट अ वेरी हायर लेवल देन देम। आज मैं 3 बिजनेसेस चला रहा हूँ जो सारे मैंने खुद शुरू करे हुए हैं। हम कनाडा में हमें लॉन्च करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, वहां पर गवर्नमेंट साथ हमारी डील हो गई है। और मतलब कि ऑल बिजनेसेस में मैं बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा हूँ। बट लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ, नो डाउट, बट लास्ट ईयर आई वेंट थ्रू सेपरेशन, आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माय वाइफ। आई टुक दैट 1 ईयर, आई वाज लाइक कोई बात नहीं, ये एक मुश्किल टाइम है, कुछ नहीं होता। डेफिनेटली यू कैन अज्यूम कि आई एम बैड इन रिलेशनशिप्स, आई टोटली एम, आई रियलाइज दैट। सो I took that time off and for 1 year I took that break कि कोई बात नहीं यार, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ये टाइम लेना है। And recently I went to someone, मैं भी किसी को मिला and उन्होंने मेरे को, मतलब I went to close a deal. I also run a digital marketing agency, so I went to close a deal and किसी close reference में था वो बंदा। तो उनका रात को मेरे को कॉल आया 11 बजे, कहते यार मिलिंद मैं तेरे को शॉप पे वो बात कर नहीं पाया, बिजनेस तो चल हम करेंगे ही करेंगे। कहते मैं हैरान हूँ यार, कहते तेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ ना। मैं कहा अभी हुआ भी नहीं है, मैं कहा अभी चल रहा है, मैं कहा अभी इसको टाइम लगेगा, बट हाँ इट्स जस्ट बीन 1 or 1.5 year बाय सेपरेशन। कहते तेरा बच्चा भी है, मैं कहा हाँ यार, एंड दैट वाज अ टफ थिंग टू डील, अभी भी है वो टफ थिंग। कहता मेरा 7 साल पहले डिवोर्स हुआ था, मेरा कोई बेबी भी नहीं था, कहता मैं आज भी ठीक नहीं हो पाया हूँ। कहता और मैं तो एनर्जी देख के हैरान हूँ, कहता तेरे को तो देख के लगता ही नहीं यार कि तू ऐसे टाइम से निकला। एंड आई लिटरली जस्ट स्माइल्ड एंड आई टोल्ड हिम यार कि अगर हम खुश ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या हुआ सेपरेट होने का। एंड लिटरली इट वाज वेरी हार्ड टू टेक दैट डिसीजन। और आज भी सारे प्रेशर करते हैं, नहीं ये है वो है, बट आई वाज एडमेंट ऑन इट कि नहीं यार कि मुझे पता है ये चीज मेरे लिए लॉन्ग टर्म से नहीं है। एंड आई स्ट्रिक्टली सेड नो टू इट। बट मैंने कहा यार कि अगर हम उसके बाद भी खुशी नहीं है, देन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू दैट टफ थिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट फोकस ऑन बीइंग हैप्पी। और वो ये नहीं देखते अच्छा मैं खुश क्यों नहीं हूँ, ये कारण है, मुझे ये ठीक करना है, मैं इस करके खुश नहीं हूँ, मुझे ये ठीक करना है, मैं इस करके खुश नहीं, मुझे ये ठीक करना है। लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, लोगों को लगता है जो पंगा चल रहा है चलने दो जी, ये तो लाइफ ऐसी है, घर पे उनके इश्यूज चल रहे हैं, चलने दो जी, ऐसी है। ऐसे नहीं तुम कहीं पहुंचोगे। तुम अगर अपनी गाड़ी के टायर की हवा नहीं सेट करते रहोगे तो तुम उस कार से 150-200 की स्पीड पर नहीं भाग सकते। इधर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा या तुम्हारा टायर फट जाएगा, तुम पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हें रेगुलरली हवा चेक करानी पड़ेगी, तुम्हें रेगुलरली गाड़ी की सर्विस करनी पड़ेगी, रेगुलरली उसमें पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा। And similarly, if you don't focus on yourself, do not engage in activities that improve your energy, then that improve your learning, you are not going to reach anywhere in your life. And you are not going to give time to this. तुम कहो यार सर्विस के लिए 2 दिन के लिए गाड़ी देनी पड़ती है, और मैंने तो देनी नहीं, मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा। अगर वो तुम 2 दिन नहीं निकालोगे तो यार it's not going to work. You are never going to reach anywhere. और ये फैक्ट है, जो गाड़ियां और जो रेस कार्स होती है उनकी 5-5 हज़ार रुपए सर्विस होती है, और जो ट्रैक्स पे चलती हैं उनकी तो हर थोड़ी देर बाद सर्विस होती है। तो जितना तुम जिंदगी में ज्यादा भागना चाहते हो, जितना जिंदगी में ज्यादा अचीव करना चाहते हो, तुम्हें अपना एनर्जी लेवल उतना हाई लेके जाना पड़ेगा। और अगर वो हाई नहीं है, अगर तुम किसी रीजन से उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, देन आई एम टेलिंग यू टू टेक दिस एज एन अलार्मिंग सिचुएशन, स्टॉप एवरीथिंग, टेक आउट 1 week 10 days एंड मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन दैट एनर्जी एंड गेट वेल। बिकॉज अगर तुम खराब एनर्जी से, लो एनर्जी से ज्यादा बड़े पंगे ले लोगे, आई एम टेलिंग यू आपको डिजीजेज हो जाएंगी, आपको बैक पेन होने लग जाएगी, आपका माइंड स्ट्रेस लेवल पे आ जाएगा, आपको हर छोटी बात पे एंजाइटी होने लग जाएगी, आपको पैनिक अटैक्स आने लग जाएंगे, रात की नींद उड़ जाएगी, सिर दर्द होने लग जाएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज पेंडिंग इश्यूज। आपका कोई ब्रेकअप हुआ, आपको किसी ने कोई बात बोली, आप अब तक उससे बाहर ही नहीं आ पाए हो, आप सेल्फ जजमेंट में हो कि मेरे को उसने रिजेक्ट कैसे कर दिया, दोस्तों से आपने खुल के बात नहीं करी, आपके 3-4 ऐसे दोस्त नहीं है जिनके सामने आप नंगे हो सकते हो, नंगे इन द सेंस कि जिसके सामने आपको कोई शर्म नहीं है। आपको यही होता है, और आजकल ये सबको है, सबको ये होता है कि अगर मैं अपनी कोई बुरी चीज शेयर कर लूंगा तो शायद ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, कि यार कि शायद फिर ये बंदा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरे साथ स्टोरीज नहीं डालेगा। बट दिस इज ऑल रॉन्ग।
हम रिश्तों की डेप्थ ही नहीं एक्सपीरियंस कर पाते जब तक हम दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते। दुख शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई तुम्हारा कितना नुकसान कर लेगा यार। एक दो तो फ्रेंड्स अच्छे मिल ही जाते हैं, 5 में से एक ने तुम्हारे को धोखा दे दिया, 2 ने तुम्हारे को धोखा दे दिया, बाकी 3 नहीं देते। एंड आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 20% डेटा एनालिटिक्स से दैट कि 20% लोग चूती होते हैं बस। एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज यू आर ऑल फर्स्ट ईयर कॉलेज, but I'm telling you these all things are really important to work on yourself so that you are able to bring results in all aspects of your life. And I see this a common problem that people are not good in their relationships, in their friendships, in their anything because of these self-called judgments and this attitude कि मुझे तो अच्छा लगना है, मुझे तो सिर्फ अच्छाइयाँ और सुख शेयर करना है, खुशी में पार्टी करते हैं, दुख में गायब हो जाते हैं। तो you make sure that you work on this. I think we have हमारा टाइम खत्म हो गया and I think I have shared जैसे कि and I'm totally telling you I did not take this seminar or did not make this in a way कि like I am a speaker and you are students or something. This was just as an elder brother to all of you guys and just sharing the most special things of my experience that I shared with you. And I hope कि अगर किसी को कुछ भी click को कुछ भी हो तो I hope they can learn from it. And you can all email me at milind@humhai.com or I'm available at Facebook, Instagram, कहीं पर भी. You can talk to me, you can message me. किसी को कोई भी personal भी कोई issues चल रहा है लाइफ में, जरूर talk it out यार, so that you can work on themselves. कुछ और भी किसी को learn करना हो, कोई भी बात हो, I'm always available. कुछ भी चीज़ हो डिस्कस करने के लिए I'm always available. कोई भी बात हो जरूर करो. And I hope this was good. Please अगर आपको कुछ learning लगा हो last 40-45 minutes में, because it gives me a real motivation and a real learning also. मैं भी सेमिनार इसलिए लेता हूँ, मेरे को सर ने कॉल करा, कहते हैं अच्छा बिकॉज स्पीकर्स पैसे लेते हैं बहुत बार, तो कहते हैं तो पैसे कितने लेगा, मैं कहा सर टोटली नो है, मैं नहीं ये सब करता, बिकॉज आई फील लाइक दैट इफ आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ एंड इफ भगवान ने मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, सो आई ट्राई कि वो मैं बेस्ट वे में कर पाऊँ और वो चीज मैं आई कैन गिव बैक टू व्हाट द वर्ल्ड हैज गिवन टू मी. सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ हो, प्लीज शेयर योर फीडबैक, मेरे को जरूर बताना हाउ डिड इट फील, हाउ वाज इट, सो आई कैन लिटरली इम्प्रोवाइज कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर किसी के साथ मेरे को आधा एक घंटा मिले तो क्या चीजें मैं बेटर शेयर कर सकता हूँ. So I hope I had a very good time and handing over to whoever is moderating the session. Thank you so much, sir. So now the floor is open for like any kind of question and answers that the students would like to ask. Students, you may either unmute yourself or you may also post your questions in the chat box. So please grab this opportunity. Any kind of questions, so please feel free. Sir is with us. Anyone? बोलो भाई. Yes, Kashish. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, as you said that we should have the courage even to share our anxiety or anxiety with others as well as happiness. So I don't do that because I think you should keep that inside yourself, because people just listen to problem, they can't help you, not everyone. So you should have that energy in yourself to keep your anxiety in yourself. I mean, not affecting your mental health, but you should keep it to yourself. It does not work. देखो दुनिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता ना, वो तुम नहीं असूल बना सकते, वो नेचर के लॉज हैं, वो वैसे ही होगा. इतनी बार आधी से ज्यादा दुनिया, आई एम सो हैप्पी सी आउट ऑफ, मतलब मैंने 45 मिनट में सिर्फ 5-10 मिनट इसके बारे में बात करी. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इट बिकॉज आई नो इट इज सो क्रूशियल इन टुडेज लाइफ. आपको अगर लगता है कि बिना शेयर करे एंजाइटी से आप डील कर लोगे, आप नहीं कर सकते. ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दुनिया में सबसे ज्यादा है. हम घर बैठे किसी प्रॉब्लम को एक चूहे से हाथी बना देते हैं और वो तब तक होता है जब तक हम किससे शेयर नहीं करते. और मैं आपको दुनिया का असूल बताता हूँ, वर्ल्ड वर्क्स ऑन इंटरडिपेंडेंस. आप अकेले दुनिया नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं जीत सकते, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते. ऐसे तो फिर परिवार नहीं होने चाहिए थे. क्यों पार्टनर्स बनते हैं, क्यों शादी होती है, क्यों दोस्त हैं दुनिया में? ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए था. सारे सोचते नहीं जी मैंने कल ही रहना है. बट आई एम टेलिंग यू, हमारा कभी भी एक या दो एक्सपीरियंस खराब होते हैं, हमें कुछ बुरे लोग मिलते हैं जो हमें सही से नहीं ट्रीट करते या हमारे साथ एम्पैथेटिक नहीं होते. हम ये नोशन बनाना था कि सारे ही गंदे हैं. सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई हमारे साथ कभी कुछ ट्रीट करता है, कभी कभी वो भी खुद परेशान होता है, उसको नहीं पता लगता. बट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही से उस टाइम ट्रीट या डील नहीं कर पाते. बट डज नॉट मीन कि सारी दुनिया खराब है.
एंड आई एम टेलिंग यू, यू शुड ऑलवेज हैव 2 or 3 बेस्ट फ्रेंड्स जिन पे तुम ट्रस्ट कर सको। और ट्रस्ट तुम्हें पहले करना पड़ेगा। पहले तुम अपनी बातें बताओ, कुछ नहीं होता यार, क्या हो जाएगा, कोई अगला तुम्हारे को क्या जज कर लेगा। हम इस थॉट से बाहर नहीं आते। पीछे क्या हुआ, अब लुधियाना लाइव के ओनर मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरे से बात करी, कहता यार तूने एक वीडियो बनाई, मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली थी, मेरे साथ कुछ हुआ था लास्ट ईयर, इंसिडेंट हुआ था, एक पुलिस वालों से पंगा पड़ गया था, एम उन्होंने आके मेरे को पुलिस स्टेशन में जाके मार दिया और मैं वो कुछ हैंडल भी नहीं कर पाया। उसने मेरे को मारा, मतलब मेरी गाड़ी लगी किसी की कार में, वो लेडी डीएसपी की वाइफ थी, वो अपने हस्बैंड को फोन करके बोलती कि ये मेरे को छेड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसने मारी, उससे लगी, उसको था कि मेरा हस्बैंड मेरे को डांटेगा, और हस्बैंड ने आगे, वो ओवर पागल, उसने आगे मेरे को पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन ले गया और मेरे को मारने लग गया। मेरे को कुछ बोलने भी नहीं दिया, मेरा फोन ब्लॉक कर दिया। नहीं तो मैं, और मैं लुधियाना में नहीं था, अगर मैं अपने शहर में होता तो वैसी टेंशन नहीं थी, बाहर आउट ऑफ सिटी की बात है। और वहां पर उसने मारा, मार मुर के कहता तू अब तूने मेरी बीवी साथ ये करा वो करा वो करा, वो मार मुर के चला गया और उसकी वाइफ आके मेरे को सॉरी बोलने लगी। एंड आई फेल्ट सो बैड एट इट। कहती नहीं प्लीज कोई एक्शन मत लेना, प्लीज कुछ ये मत करना, कुछ वो मत करना। और मैं लिटरली उस बात के बारे में फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ, मैं बड़ी देर तक डरा रहा, मुझे लगता था नहीं यार वो डीएसपी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड लिटरली इट टुक मी 6 months। उस 6 महीने के अंदर मैं इतना गुस्से वाला हो गया, लड़ाका हो गया, मैं हर बंदे को ऊंची ऊंची बोलने लग गया। क्यों? मैं एक ट्रॉमा में था कि यार कि मेरे को किसी ने आके मार कैसे दिया, फॉर नो रीजन एट ऑल। नो रीजन का कुछ गलती भी हो, किसी का कैसे हक है मेरे पे हाथ उठाने के लिए, उस चीज के कारण। और मैं कह रहा हूँ लॉट ऑफ पीपल के बचपन में, चाइल्डहुड में बहुत इश्यूज हुए होते हैं, बहुत कुछ हुआ होता है, बट क्योंकि हमने उसके बारे में बोला नहीं होता, लोगों को बताया नहीं होता, वो आज भी हमारा ट्रॉमा बना होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बहुत सारी गंदी आदतें इज बिकॉज ऑफ दैट अनफिनिश्ड ट्रॉमा, और क्योंकि आप लोगों से बात नहीं करते। मैंने 6 महीने बाद लिटरली फेसबुक पे मैं रात को 12:30-1 बजे उठ के मैंने वीडियो बनाई। और वो क्यों बनाई? क्योंकि मैं भी कैसे इंस्पायर हुआ, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो बहुत देर से मेडिटेशन एक्टिविटीज ये सब करती रहती थी, बट उसकी हमेशा प्रॉब्लम होती थी, कहती यार मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, और वो किसी लड़के से नहीं बात कर पाती थी, उसको हर लड़का गंदा ही लगता था। देन शी शेयर्ड विद मी दैट द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज छोटे होते उसका भाई उसको मोलेस्ट करता था, और क्योंकि और वो आज भी उस भाई के साथ रह रही है। उसने आज भी जाके अपने भाई से लड़ाई नहीं करी, और उसको अपने मम्मा से प्रॉब्लम है, अपने पापा से प्रॉब्लम है, पापा उसके वहां पर, पापा उसके आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उसको अपनी मम्मा से भी यही ग्रज है कि उसका भाई ने ये सब उसका करा, बट उसकी मम्मा ने रोका नहीं। अब क्योंकि मम्मा को पता ही नहीं होगा, और ना उसने भाई के लिए आवाज उठाई, ना भाई से लड़ी, आज भी भाई के साथ नॉर्मल रह रही है। और वो इतनी एंजाइटी पेशेंट है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रही है, लास्ट 4 साल से साइकेट्रिस्ट के दुकानों पे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमा लेके बैठी। तुम्हारे बोलने से, शेयर करने से, एक सही सयाने बंदे को अपना दुख शेयर करने से तुम्हारा दुख कम होता है, दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। ये एक नेचर का लॉ है, यू कैनॉट चेंज इट, यू कैनॉट चेंज इट। अगर एक बंदे ने तुम्हें सही से एम्पैथेटिकली डील नहीं करा, तुम्हारा सीक्रेट नहीं रखा, या तुम्हारा मे बी तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, तो यार कोई बात नहीं यार, कोई नया दोस्त बन जाएगा। बट बी ओपन टू मेक न्यू फ्रेंड्स। अभी टाइम है, अभी से तुम अगर अच्छे बनने के चक्कर में रहोगे कि नहीं यार कि मेरे तो अच्छा बनना है, आई नीड टू शो माई सेल्फ एज वन ऑफ द वेरी गुड पर्सनैलिटीज, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज, मैं तो फुद्दू हरकतें कर ही नहीं सकता, मेरे से तो गलतियां हो ही नहीं सकती, मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो तुम यार यू विल लिव अ वेरी शैलो लाइफ, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑलरेडी लिविंग इट। सिमिलरली कशिश, एज यू आर सेइंग कि मेरे को अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं आती, वो नहीं होने वाला। ये दुनिया का फ्यूल है। एक सबसे इंटेलिजेंट बंदा लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, बिकॉज वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकता हूँ, बट वही प्रॉब्लम जब मेरे साथ होगी तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा, बिकॉज हम इमोशनल ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, वी डू नॉट वर्क ऑन प्योर लॉजिक, वी आर इमोशनल पीपल। सिमिलरली हम कमेंट कर सकते हैं जब किसी का डॉगी मर गया कि यार अच्छा ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, बट यू कैनॉट फील इट अनलेस तुम्हारा डॉगी मर गया। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। तब तुम क्या डिसीजन लोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि तुम इमोशनली ड्रिवन होते हो। और एंजाइटी भी क्या होती है, लेट मी डिस्क्राइब यू एंजाइटी। व्हाट इज एंजाइटी? हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ऑफ फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट और फाइट क्या होता है? पुराने जमाने में जब अर्ली मैन था, तब दुनिया में उसको दो ही चीजें होती थी, या तो वो खाना खाता था या वो डर के भाग जाता था। मतलब या तो कोई बड़ा जानवर उसके पीछे है तो वो भाग रहा है, या वो कोई छोटा जानवर है उसको खाने के लिए उससे लड़के उसको खा रहा है। दो ही काम होते थे, रोटी खाते थे सारे। या तो कोई शेर आ जाता था, हाथी आ जाता था तो वो भाग जाता था, नहीं तो वो किसी छोटे जानवर पे झपटा मार के उससे लड़ पड़ता था। यही बात थी। तो फाइट और फ्लाइट एक सिस्टम हमारी बॉडी में, नेचुरल सिस्टम बना हुआ है कि जब भी हमें डर लगता है किसी चीज से, हमें लगता है हमारी जान को खतरा है, हमें लगता है हमारी जान को रिस्क है, किसी भी चीज से हमें डर लगता है। पुराने जमाने में हमें जानवरों से डर लगता था, मरने से डर लगता था, उन चीजों से जब डर लगता था तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल रिएक्शन है कि दिमाग से सारा ब्लड पंप होके बॉडी और लिम्स में चले जाता है, ताकि वो कहते हैं कि दिमाग बंद करो, तुम्हारी बॉडी जरूर भागे। तभी आपने देखा होगा कि जब कुत्ते पीछे पड़ते हैं तो तुम
इतनी स्पीड से भाग पाते हो तो वैसे नहीं भाग पाते हो, उससे एड्रेनलिन पंप होता है। एंड आई थिंक बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स या जिसने बायो पढ़ी होगी अच्छे से उसको पता होगा, दिस इज व्हाट वर्क्स। हमारा माइंड और ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा ग्लूकोज और ब्लड यहाँ पर पंप होता है, यहाँ पे चाहिए। बट जब हमें डर लगता है अपनी जान को लेके, तो हमारी बॉडी वो सारी पंपिंग और एनर्जी और सब कुछ हमारी लिम्स में दे देती है, ताकि हमारे पास लड़ने की शक्ति आए और या हमारे पास भागने की शक्ति आए। बट विद टाइम, आज की डेट में हमें कोई भी छोटी चीज से ऐसा लगता है कि हमारे को जान का खतरा है। हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा नंबर नहीं है तो क्या होगा। हमारी कोई जॉब इंटरव्यू है, हो मैं मर जाऊंगा क्या होगा। अच्छा ये सीक्रेट मेरे मम्मा को पता लग जाएगा, हो मैं मर जाऊंगा क्या होगा। हमें हर छोटी चीज से जान का खतरा सेंस होना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपकी गाड़ी के एयरबैग्स के सेंसर्स कहीं बहुत ही इजी जगह पर लगा दूं कि टच करके एयरबैग्स खुल जाए, वो वाला हाल है। तो हमें जिंदगी की हर एक चीज से ऐसा लगता है यार मेरे को जान का खतरा है, और हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट में चले जाती है। तभी आप देखो, या तो हमें गुस्सा चढ़ता था, हमारा मन करता है मारने कूटने लग जाए, चीजें तोड़ने लग जाए, या हमारा मन करता है वहां से भाग जाए। दो ही रिएक्शन होते हैं जब भी एंजाइटी होती है, या हम उस सिचुएशन से भाग जाएं या वहां पर लड़ पड़े किसी के साथ और हाथ पैर भी चला लें। जितने लोगों को गुस्सा आता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, वो सारे यही केसेस होते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैपेंस। इट हैपेंस बिकॉज हमें अपनी प्रॉब्लम्स, हमारे सेंसर्स खराब है, हमें लगता है ये छोटी चीज से हमारे को जान का खतरा है। एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर एंग्शियस और आपके मन में कुछ ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दैट विद द पर्सन क्लोजेस्ट टू यू। उसी टाइम बंदे को कॉल करो या साथ में कोई बंदा है उससे बात करो, यार कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को ये लग रहा है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आप जिस टाइम सोचोगे ना और अगला हंसने लग जाएगा, तुम्हें मुंह से बोल के रियलाइज हो जाता है कि मैं कितना ही बकवास सोच रही हूँ। आई एम टेलिंग यू कशिश, दैट रियली वर्क्स। आप किसी से भी शेयर करना शुरू कर दो, आपको बोलते बोलते 15 मिनट में आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको लगता है हो यार बात तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ मैंने भी पहाड़ में आया है ना। तभी दोस्त और फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। आज मैं अपनी लाइफ में हम 6-7 दोस्तों का ग्रुप है, एंड आई एम टेलिंग यू, नो मैटर हम कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, मैं बड़ी दिल्ली बहुत दे रहा हूँ, चंडीगढ़ बहुत दे रहा हूँ, आई मेक श्योर वी कीप ऑन मीटिंग। हम छोटे होते से इकट्ठे पले बड़े हैं, 6-7 फ्रेंड्स हैं, वी मेक श्योर वी स्टे टुगेदर, एंड दैट इज माय रियल वेल्थ। बिजनेस तो आएगा चले जाएगा, पैसा कमाऊंगा चले जाऊंगा। आज आप लोग सेमिनार्स पे बुला रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टीवीएफ इतना बड़ा स्टार्टअप बना, उसके ऊपर 4-5 साल बाद केस पड़ गया कि उसने कोई लड़की हरास करी थी अपने ऑफिस में। अब वो सच थी नहीं थी ये नहीं पता लगा, बट उसके कारण उसकी इतनी बेइज्जती हुई इंडिया वाइड की, उसकी बेइज्जती के चक्कर में सारी कंपनी खत्म हो गई। तो सक्सेस और फेलियर, इज्जत और बेइज्जती, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। बट आप अगर इस नोशन से जियोगे कि हर बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे, उसको मैं अच्छा ही लगूं, that is not going to work. And I'm telling you, Kashish, the reason you do not share with your friends around is because you have the fear of judgment. You feel that people will judge you, your friends will judge you, and they will leave you. I'm telling you that does not happen. And if the person is leaving you, जो 10 में से 20% केसेस में होता है, then he did not deserve to be your friend. I'm telling you, तुम्हारे 2-3 फ्रेंड्स हमेशा होते हैं। और तुम्हें एक और सीक्रेट बताऊं, तुम्हें शायद चुभेगा, हमारे तो सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनको ग्रांटेड लेकर रखते हैं और उनकी वैल्यू नहीं करते, हमें उनको टाइम नहीं देते। जो हमारे पुराने होते थे स्कूल फ्रेंड सबसे अच्छे होते हैं ना, हम उनको ही नहीं मिलते, जिनके साथ जाके हम सबसे नेचुरल हो सकता है ना। मैं अभी भी इतना हैरान हूं कि कोई कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो जब उनकी फट जाती है ना, ब्रेकअप हो जाता है, रो रहे होते हैं, तब उनको याद करते हैं। घूमने फिरने के लिए उन्होंने दूसरे रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है कि दिखाने के लिए मेरे दूसरे दोस्त हैं, कूल डूड, अमीर, अच्छी गाड़ियों वाले, बट रोने पिटने के टाइम मेरे को कोई और याद आ जाता है, पुराना दोस्त अपना। तब और तभी हमारी लाइफ ऐसी है, बिकॉज वी डू नॉट, हमारा फोकस ही अच्छा लगने और अच्छा दिखने में है, तभी हमारी लाइफ में फकअप्स है। But अगर if you value the right people, value the right relationships in your life, then I'm telling you, तुम आधी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ की वैसी खत्म हो जाएंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम उससे शेयर करो, उसको प्रॉब्लम है, तुमसे शेयर करे, और ऐसी काफी चीजें वैसी हल्की हो जाती। और आज की डेट में अच्छे दोस्त ही नहीं है लोगों के पास। तो कशिश, आई एम टेलिंग यू, यू आर लिटरली रॉन्ग टू थिंक दैट कि अगर हमें एंजाइटी हो रही है हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाई वो नहीं होती स्ट्रेंथ, दैट इज द नेचुरल वे। तुम खुद अपने मन में किसी चीज को बड़ा बना सकते हो, जब तक तुम किसी से शेयर नहीं करते हो तुम्हें नहीं लगेगा कि यार कि मैं हवा में कुछ चीजें सोच रही हूँ, और उससे एंजाइटी होती है। Thank you so much, sir. Is there anyone else who would like to ask the question? So there's this question that is there in the chat box, and the question says that how to use the energy in a better way. I mean, how will we know that where to invest energy? You will know when you invest energy. आपको पता है लोग ना इंट्यूशन की बातें करते हैं। आपको पता है जितने लोग बात करते हैं ना सक्सेसफुल होने की, अगर आप किसी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे ना, दे ऑल टॉक अबाउट कि हमारे दिल से कॉलिंग आई। मैं भी ये बात करता हूँ कि आई गॉट दिस कॉलिंग एंड आई हैड टू फॉलो इट, बिकॉज थर्ड ईयर में इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन। फाइनल ईयर में आके आज भी मैं एक नॉन ग्रेजुएट पर्सन हूँ, आई एम जस्ट अ +2 पास पर्सन,
बट फाइनली में आके इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू टेक, बट आई हैव दिस कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आई टुक दैट लीप की कोई बात नहीं। बट मेरे को वो कॉलिंग का क्यों पता लगा? बिकॉज आई वाज हाई एनर्जी। लोगों को यही नहीं समझ आता कि जो मेरे मन में आ रहा है वो मेरी इंट्यूशन है या मेरे लो एनर्जी थॉट्स हैं डिराइव फ्रॉम समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कुछ नहीं पता कि हमारे मन में जो थॉट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने किसी को देखा, किसी की खुंदक थी, या मेरे को था यार वो बहुत बड़ा बन गया, मुझे भी वैसा काम करना है। काफी लोगों को लगता है ये मेरी इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन नहीं है, वो जेलसी ड्रिवन थॉट है। तो आप जब हाई एनर्जी में आते हो, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग द राइट थॉट्स। दैट इज वाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। आपकी एनर्जी आज अच्छी है बिकॉज दुनिया में क्या है, सब कुछ थॉट से ही शुरू होता है ना यार। आपके थॉट्स आपको अच्छे आते हैं तभी आप अच्छे एक्ट कर पाते हो ना। अगर आपको थॉट्स अच्छे नहीं आएंगे, क्रिमिनल्स और नॉर्मल लोगों में क्या फर्क है? क्रिमिनल्स को गंदे थॉट्स आते हैं, उनका मन करता है हम किसी का रेप कर दें, उनका मन करता है हम किसी को मार दें, उनका मन करता है कुछ कर दें। वो बहुत ही लो एनर्जी लोग होते हैं। आप कभी किसी जेल में चले जाओ, पुलिस स्टेशन में भी चले जाओ, आपको अचानक ही बड़ा वो लगेगा कि मैं यहाँ से जल्दी से निकलूं, बिकॉज वहां पर लो एनर्जी थॉट्स वाले लोग घूमते रहते हैं। तो जब आपकी एनर्जी हाई होगी, यू विल ऑटोमेटिकली बी गाइडेड, नेचर विल गाइड यू, यू विल एबल टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन द रियल सेंस कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, मेरे को क्या करने में अच्छा लग रहा है, क्या करने में मैं ठीक फील कर रहा हूं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू इंक्रीज योर एनर्जी एंड एवरीथिंग विल कम आउट ऑफ यू नेचुरली। ये मैं आपको रिटर्न बॉन्ड पेपर पर लिखकर दे सकता हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, तभी घर वाले आज भी बोलते हैं कि तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता तब तक ये नहीं करता, वो नहीं करता। एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। आपका एनर्जी लेवल आप बेटर करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। एंड आई एम टेलिंग यू, आप आज की डेट में किसी भी 40 साल के 50 साल के सक्सेसफुल बंदे को मिलो, अपने पापा को पूछो, अगर आपके पापा अपने दादाजी का काम नहीं कर रहे, अपने पापा को पूछो कि पापा आज आप जो बिजनेस कर रहे हो, या आपको आपने हमेशा से सोचा था या अचानक ही इसमें पड़ गए। एंड आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ द पीपल विल से कि यार की लाइफ ब्रॉट मी हियर, कि आई डिड नॉट थिंक अबाउट दिस व्हेन आई वाज इन माय +2 और इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, बट लाइफ ब्रॉट मी हियर, but they would have been working on themselves. If you start working on yourself, start working on your energy, automatically things start falling into place. आपको रास्ता दिखने लग जाता। And I'm telling you, वो रास्ता ही आपके लिए बेस्ट होता। और हर बंदे को अपना अपना परफेक्ट फॉर्म देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, अगर एक फील्ड में जिसमें मैं नेचुरली अच्छा नहीं हूं, मैं उसमें कभी भी बेस्ट नहीं हो पाऊंगा। और आज की डेट में अगर आप बेस्ट नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर बेस्ट हो तो आप चाहे पबजी के भी बेस्ट प्लेयर हो तो भी आप मल्टी मिलियनर हो, ये तो हर कोई समझता ही है। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग द बेस्ट, एंड यू कैन ऑलवेज बी द बेस्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर नेचुरली गुड एट। अदरवाइज इफ यू आर नॉट नेचुरली गुड एट समथिंग एंड यू आर डूइंग इट टू बी द बेस्ट, द अदर पर्सन जिसका नेचुरली वो अच्छा होगा वो उसमें बेस्ट होगा, और आप सक्सेस नहीं कभी पा पाओगे। सो दैट इज अ बिग थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन एनर्जी एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट शोइंग अप टू यू। आपको अपने आप आपकी लाइफ सही होती रहेगी। All right. So do we have someone else? Are there any other questions? Students, please let me know. बड़े लोग तो यही शर्म करते हैं कि मैं सबके सामने पूछूंगा, कितनी जजमेंट होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। Okay. All right. You may ask your question, Anushka. तो सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स भी मैनेज कर रहे हैं, हम अपना आइडिया भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर जैसे आपने बोला था ना वो फेज आता है 2-3 सालों का कि बाकी सब तो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, तो फिर आप उस टाइम पे कैसे डील करते हो? तब हम एनर्जी लेवल्स मैनेज करते हैं पर फिर भी हम ऐसे डीमोटिवेट होते रहते हैं थोड़े थोड़े कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। यार थोड़ा थोड़ा देखो चलता रहता है, सबका ना अलग अलग टाइम होता है। ये भी एक मन में असूल बनाओ कि हमने कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। हमेशा देखो कि मैं आज से लास्ट साल जो कर रहा था, क्या मैं उससे बेटर कर रहा हूँ? मैंने आज से पिछले साल जो गलतियां करी, क्या मैंने उससे सीखा, क्या मैंने उस पर इंप्लीमेंट करा? और मैं तो कहता हूँ ये चीज हर 6 महीने, हर महीने, हर रोज होनी चाहिए। कभी भी लाइफ में आपको दुख आए ना, कभी भी लाइफ में झटका लगे, कभी भी कुछ बुरा हो, कभी भी आप कुछ अचीव ना कर पाए हो, कुछ भी हो, हमेशा ना सोचो कि यार मैं कहाँ गलत था। हम ना बहुत लोगों को ब्लेम करते हैं, आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं। सपोज करो कोई, जैसे छोटे होते कोई कंपटीशन में जाते थे, हमें लगता था कि यार जब प्राइज नहीं आया ना, हमें लगता था पार्शियलिटी हुई है। हर बार नहीं पार्शियलिटी हुई है, नहीं पार्शियलिटी हुई है। मैं भी करता था, मैं ड्राइंग कंपटीशन में बहुत जाता था, तो आई हैड गॉट स्टेट लेवल प्राइजेस इन ड्राइंग। अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी, बट पॉइंट इज तब भी जब प्राइज आना तो कहना ओहो बहुत अच्छी बात है, नहीं आना तो हमने कहना पार्शियलिटी हुई है। बट पॉइंट इज ये हम नॉर्मल लाइफ में भी करते रहते हैं। we keep on blaming the people around, keep on blaming the situations around, कुछ ना कुछ ब्लेम करते हैं। कई लेवल पर आज भी मैं करता हूँ, बट कहने का मतलब ये है, जब आप ये सोचोगे कि यार ये चीज मेरे साथ हुई है, इसमें मेरा क्या रोल था, हाउ कैन आई इंप्रूव, यू विल ग्रो।
एंड यू शुड लुक ऑन ओनली योर ग्रोथ. मैं भी जैसे आपकी बात ही बता रहा हूँ कि मैं भी ये सोचता था कि यार कि वो वाले स्टार्टअप वाला, अब मैं अपने आप को रितेश अग्रवाल से कंपेयर करता हूँ जो ओयो का फाउंडर है. वो भी मेरे जितना है. मैं तो नहीं, वो तो इतना बड़ा बन गया, कैसे बन गया. देन आई रियलाइज यार कि वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, उसने पहले से बहुत लर्निंग थी और उसके घर का पैसा एक्चुअली लगा. पहले बात तो न्यूज में सब कुछ झूठा था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेन द राइट इन्फॉर्मेशन. और आप भी आज अगर लोगों के बारे में देख रहे हो, समझ रहे हो, जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं लोगों की ग्रोथ देखता हूँ या लोगों की खुशी देखता हूँ, तो आई एम टेलिंग यू हमें लोगों की सिर्फ खुशी दिखती है, उनका दुख नहीं दिखता. तो ये अंडरस्टैंड करो कि आपको जो नहीं दिख रहा वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो बंदा ऐश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, बट वी डोंट नो अबाउट व्हाट फियर्स ही इज फेसिंग. वी डोंट नो कि वो रात को बेचारा रो भी रहा है. वी डोंट नो कि वो कितना परेशान है. वो अपनी प्रॉब्लम के साथ अकेला ही है. जैसे लास्ट कशिश ने मेरे से बात करी, लोग अपने प्रॉब्लम के साथ अकेले ही रो रहे होते हैं, बट हमें लोगों का सिर्फ अच्छी चीज दिखती है. आइसबर्ग मेंटालिटी बोलते हैं इसको. सपोज करो हम कोई बड़ी सी कार देखते हैं, हम कहते हैं काश मेरे पास भी हो यार, ये कितना किस्मत वाला है. हमें नहीं पता यार कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, क्या परेशान है, उसको अपनी गाड़ी की रियलाइजेशन भी नहीं है. और ये भी एक लाइफ की प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो आ जाता है हम उसके बारे में सोचते हैं, हम कोई और ही प्रॉब्लम सोच रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू फील इफ पीपल विल बी जेलस ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ. बिकॉज आज आप अगर किसी को देख रहे हो, कोई आपको भी देख रहा होगा, तो आपको लगता है यार कि तेरे को क्या पता यार मैं अंदर से कितना परेशान हूँ और तू मेरे बारे में जेलस हो रहा है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, कि मैं कितनी चीजों से मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ. सिमिलरली ऑलवेज नो कि हमें जो लोगों का अच्छा दिख रहा है उसके पीछे बहुत हार्डशिप्स, बहुत स्ट्रगल और बहुत परेशानी भी है. जब तुम वो देखोगे ना तो उनके साथ अटैच होगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं दिखूं कि यार कि मैं एक फरारी लेकर लुधियाना की सड़कों पे घूम रहा हूँ. सपोज आप देखोगे यार ये बंदा 5-6 साल में कहां से कहां पहुंच गया, इतना सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं किस्मत होगी, ये होगा. एक ऑप्शन है कि मैं आपसे जैसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर करूं कि यार मैं बड़ा परेशान था, बड़ी मुश्किल थी, मेरे पास इतनी देर पैसे नहीं थे, मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया, मैंने एक बाइक खरीदी थी अपनी पहली जॉब से, मैंने वो भी बेच दी, मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे. तो यू विल फील कनेक्टेड विद मी, you will share that pain, you will feel like नहीं यार कितनी स्ट्रगल करी है इसमें, यार हम भी स्ट्रगल करेंगे, कोई बात नहीं यार, ये भी अपने जैसा बंदा है. तो हमारे को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, हमें लगता है अगला कुछ अच्छा कर रहा है तो वो पता नहीं क्यों कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको अपने दुख पता है, अपनी सक्सेस के लिए आप परेशान होते हो. सिमिलरली बट हमें अगले की सिर्फ सक्सेस ही दिखती है, उसकी परेशानी नहीं दिखती. तो जस्ट नो दिस, इवन क्योंकि कोई बंदा शेयर नहीं करता, पहले तो शेयर करना चाहिए. दूसरी बात, अगर अगला बंदा नहीं शेयर कर रहा, जस्ट नो दिस फ्रॉम इनसाइड कि अगला बहुत स्ट्रगल से, बहुत मुश्किल से वहां पर पहुंचा, तो उसको ब्लेसिंग दो, उसको बोलो अगला और सक्सेसफुल हो. बट आई एम टेलिंग यू, ये भी एक नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है. हम किसी का कुछ अच्छा दिखता है, कहते हैं यार इसके पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ना हमारे पास और कमी हो जाती है चीज की. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, हम अगले को भी एक बद्दुआ दे देते हैं, इसको बोलते हैं नजर लगना. हम अगले को, और ये नेचुरली हर बंदे के मन में आता है, अपनों के लिए भी आ जाता है, यार उसने ये वाली गाड़ी ले ली, यार उसने ये कर लिया, यार उसने वो कर लिया. इसको चेंज करो. एंड आई एम टेलिंग यू, आपको 1 महीने में रिजल्ट दिखेगा. आप किसी का भी कुछ देखते हो ना, बड़ा, किसी का बहुत बड़ा घर है, किसी की बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, किसी की बहुत अच्छी लाइफ है, कुछ भी चीज किसी की बहुत, आप बोलो यार आई ब्लेस हिम, ये और ग्रो करे लाइफ में, आई ब्लेस हिम यार ये और खुश रहे. किसी का रिलेशनशिप देखते हो, आप देखते हो यार ये कितना खुश है, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, रात को लड़ रहे हो आपस में, यार कितना अच्छा है इनका, तो कितना लवी डवी कपल है. अब बोलो ब्लेस करो दिल से कि यार ये और खुश रहे, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना है, आई विश ये ऐसा ही रहे. एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट गेटिंग दोस ब्लेसिंग्स बैक. एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ. हमेशा ये देखो कि मैं खुद से कितना ग्रो कर रहा हूँ. स्टॉप लुकिंग एट पीपल, यू विल लिव अ मच बेटर हैप्पियर लाइफ. नहीं तो आपका खुद ही दिमाग खराब हो जाएगा, खुशी भी छोड़ दोगे, सक्सेस भी नहीं मिलेगी, पर जो है वो भी चला जाएगा और रोने लग जाओगे. Someone raise their hand, I guess. Yes, sir. Parnika, you have raised your hand. Is there anything that you would like to ask? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आप कह रहे थे कि स्टडीज के साथ साथ मतलब एक्सपेरिमेंट्स भी करने चाहिए और मैनेज करना चाहिए टाइम, तो सर मैंने पूछना था कि आप कैसे टाइम मैनेज करते थे स्टडीज के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करके बिजनेस में? कॉलेज में कितनी स्टडीज हैं. पहली बात तो तुम ट्यूशन ना लगाओ, जो तुम्हें समझ आ रहा है ना उतने नंबर लाओ. मैं वही कह रहा हूँ, जब तुम, आपको पता है हम एक सिस्टम है, 60% से ऊपर वालों को फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं, ये आई थिंक सबको पता है ना. इसका मतलब क्या है, हमारे सिस्टम ने एक लेवल दिया है कि 60% से 100% के बीच में मार्क्स लाने वाले बंदे सारे एक बराबर है. और एलिजिबिलिटी भी आप कहीं पर जाओगे ना, आपने एमबीए करनी है, कैट का एग्जाम देना, कुछ भी देना है, वहां पर सिर्फ 60% एलिजिबिलिटी चाहिए. तो अगर आप 60% से ज्यादा लाने की ट्राई कर रहे हो और कॉलेज में बाकी चीजें नहीं सीख रहे हो, तो आप बेवकूफ हो, आपको कोई जरूरत नहीं है. शाम को जाके कॉलेज की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. कॉलेज में पढ़ो, समझो, उस चीज को इंप्लीमेंट करो. और ये बात मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, टीचर्स भी सपोर्ट करती हैं, टीचर्स भी
मतलब दे टेल यू कि यार वील बी वेरी हैप्पी अगर आप ये अचीव कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, यू शुड डू ऑल द थिंग्स। हो जाता टाइम मैनेज। और टाइम बहुत है, हमें लगता है हमारे पास टाइम कम है, आई एम टेलिंग यू टाइम बहुत है, एनर्जी कम है। आप जब एनर्जी थोड़ी इंक्रीज करोगे सब कुछ बेटर होने लग जाता है, सब कुछ बेटर होने लग जाता है। आप एक बार में आप, मैं तो हैरान हूँ, स्कूल टाइम के बच्चे सुबह भी वही पढ़ेंगे, शाम को भी वही पढ़ेंगे, कितनी कितनी इनएफिशिएंट चीज है। एफिशिएंसी पे वर्क ही नहीं करते लोग, ये नहीं देखते यार कि ये चीज ऐसे करने में इतना टाइम लग रहा है, मैं इसको एफिशिएंसी के साथ करूं तो कैसे कर सकता हूं। जस्ट मेक श्योर दैट यू बी 100% वेरेवर यू आर। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100% उसको करो, जब आप कुछ कर रहे हो 100% उसको करो। एक चीज को जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालने की लोड़ नहीं है। और कॉलेज में तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर बंदा आपको सपोर्ट करता है। स्कूल में उल्टा होता था, अब कॉलेज में हर बंदा आपको सपोर्ट करेगा फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। यू ब्रिंग कम विद न्यू आइडियाज, यू गो टू योर प्रिंसिपल, सर मेरा ये करने का दिल है, आई एम टेलिंग यू एवरीवन विल सपोर्ट यू। दे कैन नॉट सपोर्ट यू इन द वे दैट यू माइट हैव एक्सपेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर पर जाता हूं, मैं कहता हूं सर मेरे को 10 करोड़ चाहिए, वो कहता है मैं 10 तो नहीं दे सकता, मैं 2 दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, 4 दे सकता हूं। तो दैट आल्सो हेल्प्स। तो आप ये ना सोचो यार 10 नहीं दे सकता तो मतलब मेरा तो आइडिया ही खराब है, मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, नो वन इज सपोर्टिंग मी, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते। 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है, भाई मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते, उनको ब्लेम करते रहते हैं बेचारों को। पेरेंट्स कहते हैं भाई तू कुछ कर, हमें तेरे पे कॉन्फिडेंस आए, हम तो डरे रहते हैं कि तो कोई पंगा लेगा बेचारा, तेरे को ना कोई नुकसान हो जाए। उनको तो तुमसे प्यार है बस, तुम कॉन्फिडेंटली कुछ करना ही नहीं शुरू करते। तो डोंट थिंक अबाउट इट, सब हो जाता है, कुछ नहीं होता, तुम सोचो सब मैनेज हो जाता है। जस्ट डोंट अपना ओवर एनर्जी किसी जरूरत से ज्यादा वाली चीज पे ना लगाओ, आपको टाइम मिल जाएगा। Kartikeya, Thank you for uh, answering the query. okay, Kartikeya, you have also raised your hand. Anything that you would like to ask? यस भैया, मेरा ना जैसे ये क्वेश्चन था कि अब जैसे हमारे पास कोई आइडिया या फिर कुछ भी हमने स्टार्ट करना, तो हमें लोग कैसे मिलेंगे, या फिर हमारी सोच के, या फिर कुछ मतलब डिफरेंट जो कर सके, ताकि एक अकेला बंदा तो चला नहीं सकता ना कुछ भी। मतलब यार पता क्या बात है, अगर तुम ये सोच के चलोगे ना कि मैं पहले लोग ढूंढ लूं फिर शुरू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेक्नोलॉजी का इल कुक्कड़ नहीं आता, एंड आज हमें सबसे बड़ा रोल ही उसकी टेक्नोलॉजी का है। और आज अगर हम बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं वो भी हमारी टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करा है हमने इंडिया के लिए, छोटे छोटे शहरों में हमें खोलने का टारगेट है। बाय नेक्स्ट ईयर आई एम टारगेटिंग 100 सिटीज इन इंडिया, नेक्स्ट ईयर के एंड 2020 के एंड तक, बिकॉज उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। बट मेरे को टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं पहले दिन से उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मेरे को था कि यार मेरे मन में है, मैंने करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब तुम शुरू होते हो ना तब तुम्हारे साथ राइट लोग जुड़ेंगे। अगर तुम आइडियाज लेवल पर लोगों को इकट्ठे करते रहोगे ना कि नहीं यार मेरा ये मन है, तू मेरे साथ जुड़ेगा, ये मेरा मन है मेरे साथ जुड़ेगा, पहली बात तो वो अगला बंदा तुम पे शायद ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि यार कि हाँ ये कर रहा है नहीं कर रहा है या क्या चीज है। तो आइडियाज में तुम सोच सोच के ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, कुछ चीज शुरू नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी बात, जब तुम किसी चीज को शुरू कर पा रहे हो तुम राइट पार्टनर्स के डिसीजन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने औरबिंदो में ही था, आई एम टेलिंग यू, रोज मेरे पास कोई आता था, यार मिलिंद मेरे को ये काम बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी तेरे साथ शुरू करूंगा। मैं कहा आ जाओ। मैंने जैसी बंदे ने आना, मैंने उसको कहना भाई ये यहाँ से पिकअप करके डिलीवर करा। उसने एक डिलीवरी करने जानी, उसके तोते उड़ जाने, उसने कहना हाय हाय मैं डिलीवरी वाला बन गया हूँ, मैंने थोड़ी डिलीवरी करने में घर चले जाना। कम से कम 15-20 लोग मेरे पास आए, उनमें से 2-3 टिके जिनको ओवर ही प्यार था, कहते यार हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, कस्टमर कितने खुश हो रहे हैं, कस्टमर इज सो हैप्पी, यार वो लोग तो दुआएं दे रहे हैं, हमने लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एंड दे इवेंचुअली बिकेम माय टीम। आई डिड नॉट इनवाइट देम इन, आई वाज जस्ट डूइंग माय थिंग एंड पीपल जस्ट जॉइंड। आपको सिर्फ एक आइडिया लेके, एनर्जी लेके जस्ट शुरू करना है। करते कि इफ you have something in your mind, just start something. And I'm telling you, आपको ये लगे मैं अकेला नहीं कर सकता, and that is true. आप अकेले एंड तक नहीं पहुंच सकते, बट आप अकेले शुरू जरूर कर सकते हो। कुछ भी चीज शुरू करने हो अकेले शुरू जरूर कर सकते हो। मेरे को वेबसाइट बनानी भी नहीं आती थी, मैंने अपने दोस्त के पास गया, डोमेन खरीदा, गगन प्रिंटर्स वाले के पास गया, उनको बोला एक क्रिएटिव बना दो, और वो क्रिएटिव मैंने अपनी वेबसाइट पर लगा दिया कि वेबसाइट इज लॉन्चिंग सून। तो लोगों को ये हो गया भाई काम शुरू हो चुका है, मैं कुछ नहीं शुरू हुआ था। जो मुझे आता था मैंने वो करा। मैंने को फोन उठाना आता था, मैंने फेसबुक डाल दिया कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू कंपनी, दिस इज आवर कस्टमर कॉल केयर नंबर। आज भी मेरे को फोन आता है मेरे नंबर पे, क्योंकि इतने मैंने हर जगह अपना नंबर दिया हुआ था। आज मेरे को कॉल आता है कि बेटा यहाँ से ये ले आओ, बेटा वहां से वो ले आओ, क्योंकि मैंने अपना नंबर दिया था और मैंने यही डाला कि यार वी आर लॉन्चिंग अ न्यू कंपनी, दिस इज आवर कॉल सेंटर नंबर, किसी को कोई काम हो उस पर करो। और कॉल उठाता था मैं और बिंदु की क्लास में बैठा हुआ लास्ट बेंच पे। कस्टमर का कॉल आना, चाहने की लेक्चर में मैं नीचे जुड़ के ऑर्डर लेना, हाँ जी मैम ये हो जाएगा, हाँ जी अच्छा 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, कोई बात नहीं डिलीवर कर रहा हूँ। फिर लेक्चर खत्म होना, जल्दी से मैंने निकल के बंक मारना और जाके मैंने डिलीवर करके आना। इसलिए मेरे को कॉलेज से निकाल दिया गया, वो अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है कि जो तुम अकेले कर सकते हो वो तुम कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट आउट यार। धीरे धीरे वेबसाइट बनाने वाले भी आ गए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी आ गए, धीरे धीरे मार्केटिंग वाले बंदे भी आ गए, और टीम बनती रही, और आज इतनी अच्छी टीम हो गई। आज कैलिफोर्निया का टेक्नोलॉजी एडवाइजर मेरे साथ कंपनी में ऑनबोर्डेड है,
आज टीवीएफ की जो मार्केटिंग हेड थी, तभी मैं टीवीएफ का एग्जांपल ले रहा था, नेशनल मार्केटिंग हेड, अब टीवीएफ इम्प्लोड होगी, सो शी इज नाउ हेडिंग एमएक्स प्लेयर डिवीजन, वो साल का 50 लाख का उसका पैकेज है, शी इज मार्केटिंग एडवाइजर फॉर माय कंपनी, शी ओन्स इक्विटी इन माय कंपनी, तो आई हैव वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ हमें। बट अगर मैं पहले दिन सोचता है मुझे पहले दिन से लोग मिल जाए, नहीं होता, नहीं होता, यू जस्ट स्टार्ट आउट यार। तभी तो कह रहा हूं ना, तू जिस एनर्जी से शुरू कर देगा, लोग आने लग जाएंगे साथ में, तो वो राइट लोग जुड़ेंगे। अभी तो प्लानिंग में किसी को भी जोड़ लेगा, लोग बातों में अलग होंगे, तू जब शुरू करेगा तू कहेगा यार ये तो उतना एफर्ट डाल ही नहीं रहा, मैं ज्यादा डाल रहा हूँ, ये हो रहा वो। और मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत सारी पार्टनरशिप्स मैंने खत्म करी हैं, बहुत लोगों को मैंने निकाला, क्योंकि वो बातें कुछ और करते थे, करते टाइम कुछ और करते थे। तो जस्ट यू जस्ट स्टार्ट आउट एंड let things fall into place themselves. Thank you, sir. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। All right. So since we're short of time, we'll be taking just one last question. Nakul, you may ask a question, and then we'll be sharing sir की email ID as well. तो आपकी जो भी doubts हो, you can also post your queries over there. अब सबसे बड़ी बात है, मेरे को सपोज करो पे 4 लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं उन 4 लोगों में से जज कर पाया हूँ कि कौन लोग सुबह नहा के आराम से बैठे हैं और एक्टिवली सुन रहे हैं, और कौन लोग अभी भी बेड पे पड़े हुए सुस्ती से सेशन अटेंड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ एनर्जी लेवल हैपेंस। मतलब मेरे को पता लग रहा है कि यार कौन कितनी एनर्जी में है, और वो बंदा उस हिसाब से ये सेशन से चीजें ले पाएगा। तो दैट इज द, मतलब एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी पे जो लोग नहीं काम कर रहे, उनको नहीं कुछ समझ आएगा, ना वो समझ पाएंगे, ना वो एक्चुअली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने अपना एनर्जी लेवल कैसे रखना है। I've shared my email ID. Yeah. Nakul, you may ask a question. Yes, ma'am. Good afternoon. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम कोई स्टार्टअप आइडिया सोचते हैं तो उसको किन पैरामीटर्स पर चेक करें कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा या नहीं, बिकॉज मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने 5 to 10 years में ही फेल हो जाते हैं। तो कैसे चेक करें अपनी आइडिया को कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं? पैरामीटर्स क्या हैं? 99% स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 2 years। अगर आपका स्टार्टअप 2 साल काट गया, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट आपके लिए ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपको अभी 2 साल का भी नहीं सोचना चाहिए। एट योर टाइम यू शुड थिंक अबाउट राइट कस्टमर्स। हम किसी भी स्टार्टअप आइडिया को, इसको बोलता हूँ एमवीपी। एमवीपी होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब कि पता कैसे चलता है यार कि जो भी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब हमें शुरू करा, सो व्हेन आई वाज डूइंग डिलीवरी, पीपल वर रेडी टू पे 50 रुपीज, 100 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज। तो उससे मुझे पता लगा कि नहीं यार, इफ पीपल आर रेडी टू पे फॉर दिस, और मैं अगर 50, 100, 70, 80, 90 रुपीज लेके एक डिलीवरी बॉय से दिन में ये सारे काम करवा सकता हूँ, पर ऑर्डर इतने ले सकता हूँ, और डिलीवरी बॉय को 30-40 रुपीज दे सकता हूँ, और मेरे को भी 20-30 रुपीज मिल जाएंगे टू ऑपरेट एंड मैनेज द होल बिजनेस, देन दिस इज अ वायबल प्रोडक्ट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मैथ। जैसे मैंने आपको बोला, अपने बाइक वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी कि मैंने देखा एक 11,000 का टूटा हुआ करिश्मा है। मैंने रियलाइज करा कि ये करिश्मा 25,000 का भी बिकता है इस पर्टिकुलर ईयर का, बट ये इसलिए इतना 11,000 की क्योंकि ये बहुत खड़का हुआ है, एंड आई रियलाइज कि इसके अंदर इतने पैसे लग के ये रिपेयर हो सकता है। तो दैट वाज फाइंडिंग अ ब्रोकन वैल्यू चेन। सो आई रियलाइज एंड आई देन द सेकंड चैलेंज वाज टू अरेंज फंडिंग फॉर इट। उसके लिए मैंने अपना फोन सेल करा, 2-3 हज़ार का फोन ले लिया, 11-12 हज़ार का बाइक ले लिया, बाइक पर पैसे लगाए, बाइक को पैसे लगा के 3-4 हज़ार उस पर बाइक पर पैसे लगाए, फिर बाइक को 25,000 का सेल कर दिया। फिर जो मैंने फोन बेच के पैसे लिए थे, मैंने दोबारा 15,000 का फोन ले लिया, 10,000 मेरे पे प्रॉफिट बच गया। So this is a broken value chain. So you always have to look out for broken value chains, कि अगर कोई चीज करके कोई बंदा उससे ज्यादा पे करने को रेडी है, या आपकी कॉस्टिंग, फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल ओला थी, वो मेगा कैब्स 300 रुपए लेता था क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा थी। ओला ने सोचा यार गाड़ी मेरी नहीं, कुछ मेरा नहीं यार, कि मैं कमीशन लूंगा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप 100 रुपए पे करो, ड्राइवर को पे करो, मैं उसके 10 रुपए में भी खुश हूँ, क्योंकि मैं कितनी सारी कैब रख सकता हूँ। मेगा कैब वाले बंदे ने अपनी जेब से पैसा लगाना था, वो 2-2.5 करोड़ तक ही लगा सकता था, जबकि वो भी बहुत ज्यादा थे, तो 25 कैब ले सकता था। उसने सोचा मुझे तो सिर्फ टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है, गाड़ियां तो यार इंडिया में कितनी सारी है और मैं कितनी बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ। तो उसने बोला कि अगर मैं एक कैब से 100 रुपए कमाने के बजाय अगर 100 कैब से 10 रुपए कमा सकता हूँ, 1000 से 10 रुपए कमा सकता हूँ, मैं 10 रुपए में खुश हूँ। तो उसने कस्टमर का प्राइस डाउन कर दिया और सर्विस भी बेटर दे दी। समझ रहे हो? दिस वाज अ सक्सेसफुल फिक्सिंग ऑफ अ ब्रोकन वैल्यू चेन। तो आपको ओला मिलने लगी सस्ते रेट पर विद अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस।
और जो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उसने एक आइडिया ये लगाया कि यार कि मैं अपनी कार डालने की बजाय मैं लोगों की गाड़ी को थोड़े टाइम के लिए यूज करूं और वही ओनर है, वो जो मर्जी करे अपनी गाड़ी के साथ, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन करवाऊं, तो कॉस्ट कितनी डाउन आ सकती है। तो व्हेन ही थॉट अबाउट इट, ही फाउंड अ ब्रोकन वैल्यू चेन और उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। सो यू कीप आउट लुकिंग फॉर ब्रोकन वैल्यू चेन्स। ये देखो कि मैं एंड यू हैव टू जस्ट बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, कि अगर ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अगर लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करने को रेडी हैं, दैट मीन दैट इज द राइट थिंग। और उसको टेस्ट करो, कम से कम 100 कस्टमर्स आपके होने चाहिए, 100 200 300 कस्टमर्स होने चाहिए जो आपको रेगुलरली पे कर रहे हैं। फिर आप रेगुलरली उसको वायबली कैसे चला पा रहे हो। उसको पहले दिन से ऐप, टेक्नोलॉजी, वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको फोन पे भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। एप्लीकेशन और वेबसाइट सिर्फ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके को एम्पलीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेला कॉल उठा के हमें की डिलीवरी करता था, बट मेरे को ऐप की जरूरत बाद में पड़ी जब हमारा कॉल सेंटर भी की कॉस्ट ज्यादा पड़ने लग गई। तो ऐप मुझे, अगर मैं पहले दिन से ऐप बनाने में लग जाता, पहले दिन से मैं कहता नहीं लोग मेरी ऐप डाउनलोड करो फिर ऐप यूज करो, तो मेरा काम ना चलता। तो मैंने जैसे जो मेरे को आता था मैंने वो शुरू करा। सो नकुल, इफ यू आर लुकिंग टू क्रिएट अ सक्सेसफुल वायबल प्रोडक्ट, तो साल 2 साल 4 साल 5 साल की ना सोचो, आप सिर्फ 6 महीने की सोचो। जस्ट क्रिएट समथिंग एंड ट्राई टू फाइंड राइट कस्टमर्स फॉर इट, ट्राई टू सेल योर आइडिया। पहले अपने कॉलेज में बेचो, फिर कॉलेज के बाहर बेचना शुरू करो। जैसे जैसे आप नए नए कस्टमर्स को मिलते रहोगे, आपको राइट फीडबैक मिलता रहेगा और आपको पता लगता रहेगा कि इज द कस्टमर रेडी टू पे फॉर दैट। और सबसे बड़ा एक सक्सेस का मार्क होता है किसी भी वैल्यूएबल आइडिया का, इज रिपीट कस्टमर्स। अगर आपको रिपीट कस्टमर्स मिल रहे हैं जिनसे आपको रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज व्हेन यू कैन से दैट योर आइडिया इज सक्सेसफुल। फिर उसको स्केल करने का सोचो, फिर सोचो कि मैं अपने कॉलेज में कर रहा हूं, अब मैंने इसको बहुत बड़ा कैसे करना है, वो बाद का स्टेज है। बट फॉर फर्स्ट इन द बेसिक स्टेप्स, दिस इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, once again. So now I would like to request our principal, sir, to please say a few words and to please extend the vote of thanks as well. Milind, it is very nice to hear to you. बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से बोलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। ज़्यादातर लोग थ्योरीज में उलझ जाते हैं और बात जो है कहीं पर पहुंच नहीं पाती। इट वाज वेरी लाइव सेशन एंड इंटरेस्ट शोन बाय स्टूडेंट्स वर आल्सो एपरेंट। लेकिन कुछ बच्चों को और कुछ आपसे मैं बातें करना चाहूँगा। एक हमने यहाँ इनोवेशन सेल शुरू किया है, जिस इनोवेशन सेल के अंडर ही हम पिछली ये 4th-5वीं एक्टिविटी करवा रहे हैं। क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था, तो एक समस्या हमारी ज़रूर है कि बच्चे एकदम कॉलेज कैंपस में नहीं है, तो इट इज़ गोइंग ऑन वेरी स्लोली। लेकिन आइडिया यही था जो आप कह रहे हैं कि प्रोवाइड एक सम टाइप ऑफ द इकोसिस्टम टू द स्टूडेंट्स, जहाँ पर वो टीम्स बना सकें, यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश कर सकें या एक्सपेरिमेंट कर सकें। और अगर दे आर हैविंग सम वायबल प्रोडक्ट, देन वी कैन लॉन्च इट कमर्शियली आल्सो। तो उसके लिए हमने सबसे पहले IIT के साथ भी, ये जो रोपड़ में खुला है, टाई अप किया इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। वो उनका लॉन्च पैड एक प्रोग्राम भी चल रहा है, बच्चों को मैं आज ईमेल करूंगा वो। यू कैन गेट द फंडिंग अप टू 4.5 लाख आल्सो। यानी अगर आपका वाइबल प्रोजेक्ट है, टीम है और आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो हम कॉलेज के अंदर कुछ लैंड, कुछ स्पेस भी दे सकते हैं, और IIT वाले भी दे रहे हैं, और कैपिटल भी अवेलेबल है। और आने वाले समय में वी आर आल्सो प्लानिंग टू हैव सम entrepreneurship fair program where you can test your ideas, where you can market your ideas and you can have a test marketing. तो आज जो समय है चेंज हो रहा है। जब कुछ साल पहले की हम बात करते थे, जैसे हम कह रहे थे, तो इतना लोग भी नहीं सोच रहे थे, कॉलेजेस भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल, सपोर्ट इज अवेलेबल, लेकिन आइडिया तो बच्चों ने लेके आना है। एंड व्हाट ही वाज सेइंग, एनर्जी, ट्रू। अगर एनर्जी आप में है तो इसका फायदा उठा पाएंगे, एनर्जी नहीं है तो ये सिर्फ एक प्रपोजल ही रह जाता है। दैट्स वेयर वी आर लुकिंग टुवर्ड्स। दूसरा जो कशिश बात कर रही थी, कशिश, हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, हम सब भी यहाँ अवेलेबल हैं, चाहे टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात शेयर करने के लिए है, यू आर मोस्ट एंड वेलकम। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। कई बार जो हम अपने इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उनसे बात करने से कतरा जाते हैं, बिकॉज यू फील जैसे जजमेंट की बात स्पीकर कर रहे थे। लेकिन यू नो, जो टीचर्स होते हैं या कोई और ऐसे इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा तो सिर्फ आपकी ग्रोथ में, आपके सक्सेस में इंटरेस्ट है। We are having psychologists, professional psychologists also. We are, all of us are here to help you out.
तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. एनी टाइम whenever you require us, we are here. And I will request Milind also. Milind, we are starting up on this belief that we will be getting the local support from the businessman industry, because it is not so that our teachers can look at the venture capitalists, or they can look at the angel investors, or you can actually look at whether the idea is viable or not. तो हो सकता है फ्यूचर में भी हमें आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे. इट वाज इंडीड ए प्लेजर फॉर अस टू लिसन टू यू. बहुत मजा आया सुन के, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना और प्रैक्टिस से बात करना दोनों में बहुत फर्क होता है. इट वाज एन एंजॉयबल सेशन. कीप डूइंग द गुड वर्क. इट्स अ ग्रेट सोशल कंट्रीब्यूशन. थैंक्स अ लॉट. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, everyone. So this was it, and then sir has also shared his email ID with all of us. So again, if there are any students who would like to reach out to him, they can email him, जब भी उनको time मिले, and I'm sure that sir is there to help us in each and every way. So thank you so much, all of you, for being such a wonderful audience. We may leave the meeting now. Thank you.